Good morning, all. Thank you for coming. And can we start with introductions? Viral sir. Good morning, sir. Viral Shah, LG Group of Colleges. Good morning, sir. Vikas Agarwal, private incubator named Heroify in Ahmedabad. Good morning, sir. I'm from UCLA. Good morning, sir. I'm Nissan Datta from the Economic Times. Namaste, sir. Manasvi Thapar from Candor Deagle. Namaste, sir. I'm Satya Acharya, faculty of the Holistic Delivery Institute. Namaste sir, I am Ritwij Vora and representing my startup career coach. Namaste, sir. I'm Yash Shah, startup East Vaste. Good morning, sir. I'm Kuldeep Tiwari. I'm a freelance journalist and startup activist. My name is Kumar Manish. I am curator at Ahmedabad Global Shakers. This is initially a World Economic Forum. Good morning. I'm Atit Bajaj. I run a crowdfunding platform by the name of Start51.com. Namaste sir, I am Sharad Parekh. I run Store Universe Private Limited. Good morning, sir. Mahendra Choudhury, running Tata Energy Private Limited. Good morning, sir. This is Nilambari from Bookman. नमस्ते सर मेरा नाम नीरज है आसमान फाउंडेशन का एक संस्था चलाई है Good morning, sir. We are running an online community for stock investors called StockAdder.com. Good morning, sir. My name is Nadeem. I have launched a supermarket called Hardy Mart, which is into rural franchising. Good morning, sir. I'm Ram. I run a social network called Conversa. Good morning sir, I am Dinesh from Uniconnect. Good morning, sir. My name is Nitin. I run a digital advertising company called Digital Upstarts. Good morning sir, I am Ipsit. I am from IT Gandhinagar. I started my own company 4 years ago. Good morning to you all. I am Dr. Vijay Purani. I am working as a joint director in technical education. Your side, joint director, we are working with technical education. Good morning, sir. And friends. I am AJ Shah from Ishtar Higher Education. Good morning sir, and all of your friends. Myself Yermik and I am big part of the startup ecosystem activities in the Good morning all. I am Rahul Baksidani. I run Youth Connect as well as Youth Connect Foundation. Good morning, I am Bhupendra Singh. I also to recognize myself also before you. I think let us start with your all experience and suggestions. We want to go ahead in this startup policy. As the Honorable Prime Minister had also announced before 6 months and before a fortnight period also, we repeated about the policy. He is my secretary, Pandit Doshi. So good morning. We can start with discussing how we can bring in interventions at university level, what kind of interventions, what kind of changes in the system we can bring at university level to take the Startup Gujarat, Stand Up Gujarat initiative ahead. Just before that, I just thanks to the Honorable Minister and Secretary. In fact, when we entered, आज जो हम पहली बार एंटर कर रहे थे यहाँ पे, तो जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो कह रहे थे स्टार्टअप कुछ हो रहा है। ये क्रेडिट आपको जाता है, पंकज साहब को, शाह साहब को, मिनिस्टर जी को, कि कम से कम 2 महीने में जो 4-5 मीटिंग हुई, तो स्टार्टअप की अवेयरनेस सिर्फ यूनिवर्सिटी में नहीं हो रही साहब, यहाँ आसपास भी होने लगा है। तो वो हमको एक अच्छी चीज लगी और ये लगता है दिस इज समथिंग दैट गुड थिंग इज हैपनिंग। So Rahul, would you like to do some introduction comments? Once again, thank you, sir. Even मैं सामने जो बोला, I also stand stood there और मेरे को 10 मिनट खड़ा रखा सिक्योरिटी गार्ड ने और बोला हमको समझाओ पहले स्टार्टअप क्या होता है, एंड हम लोगों ने काफी डिस्कशन किए हैं। Good thing that my security has also started taking So हम लोगों ने काफी डिस्कशंस किए हैं, सर। आई थिंक आप 4-5 मीटिंग्स आपने अटेंड की हैं गुजरात यूनिवर्सिटी में और एलजे में और काफ़ी सारे डिस्कशंस हुए हैं
अब ऐसा लग रहा है कि एक एक्शन एजेंडा डिसाइड करें जो एग्जैक्टली हम इम्प्लीमेंट कर सकें, इन्वॉल्विंग यूनिवर्सिटीज, एजुकेशन डिपार्टमेंट इन एवरी अदर एजुकेशन कंपोनेंट ऑफ द स्टेट। और सबसे पहली बात जो दिमाग में आती है वो है कि कॉमन यूनिवर्सिटी स्टार्टअप पॉलिसी जैसा कुछ वी कैन डेवलप। GTU ने ऑलरेडी एक स्टार्टअप पॉलिसी बनाई है, स्टूडेंट स्टार्टअप पॉलिसी, एंड देखा जाए तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सबको हम encourage कर सकते हैं कोई तरीके से to build startup. Obviously not every student will make a startup, but at the same time अगर हर कॉलेज में से 5 अच्छे स्टार्टअप भी निकल जा सकते हैं तो उसमें से we can create a huge number of startups across गुजरात। गुजरात में 15 लाख बच्चे हैं। I think 170 countries have less population than 15 lakh. So that's a huge number. And we can tap that potential through the education department. So a common university student startup policy में क्या components होने चाहिए? We can have your inputs on that. और इनफैक्ट सर पंकज सर एक बार आए ACPC में जब स्टार्टअप सेंटर में शाम को आए और 30 स्टार्टअप्स आई थिंक सर दैट डे मेट टीम एंड ही इंटरैक्टेड विद देम। एक बेसिक लेवल पे इंटरेक्शन भी हुई थी कि क्या कैसे चाहिए यार। कुछ लोग आज उसमें भी हैं यहाँ पे। तो एक जो हमको लगता है कि कुछ शुरुआत तो बिना कुछ सिस्टम्स में भी चालू हो गया है। अब इसको अगर हम थोड़ा पैट्रोनाइज करें तो थोड़ा सिस्टमेटाइज करें तो ये जो भी 40+ यूनिवर्सिटीज हैं और इतनी सारी संख्या है तो ये बहुत बड़ा एक रिसोर्स बन सकता है। तो कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने सोचा है और हम लोगों ने जो मेजर फोकस ये कोशिश कर रहे हैं कि जब हम लोग वो प्रोसेसेस वगैरह डेवलप करना चाहते हैं जो बहुत ज़्यादा रिसर्च कंज्यूमिंग ना हो, कि हर चीज़ जो आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर करता है उन प्रोसेस में नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन उन प्रोसेस जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को लिवरेज करके कर सकते हैं। हर यूनिवर्सिटी के पास इंटरनल रिसोर्सेज हैं, हर कॉलेज के पास इंटरनल रिसोर्सेज हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा उनको इंसेंटिवाइज करते हैं तो थोड़ा मोटिवेट कर दें तो वो लोग जैसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किया, कुछ इनोवेशंस वगैरह वहाँ पे दिखाया कल चीफ मिनिस्टर जो मैडम जब आए थे, तो मुझे लगता है थोड़ा सा वो नॉन रिसोर्स कंज्यूमिंग प्रोसेस को बनाएं। और हर यूनिवर्सिटी के पास हमने वाइस चांसलर साहब से भी मीटिंग किया था 5-6 यूनिवर्सिटीज की आपकी मीटिंग होने के बाद और उनकी भी सजेशंस ली। उन्होंने कहा कि वी हैव डिसेंट रिसोर्सेज इनसाइड, सो वी नीड अ मैकेनिज्म हाउ टू डिप्लॉय दैट रिसोर्सेज so that at least 100-200 startups in every university can be supported, basic operational space, उनको एक basic support system, 40 universities coming together। तो एक बात जो आपने उस टाइम में कहा था कि खाली हम टेक्नोलॉजी में सीमित होना नहीं चाहते, अब लिबरल साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, एग्रीकल्चर के भी हैं, तो हम लोग सोच रहे थे कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं एंटरप्रेन्योरशिप में उसको जो एक्सपर्टीज है उसको लाके एक इकोसिस्टम बनाने की कोशिश करें। एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स के लिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को जिम्मेदारी दें, फिर टेक्नोलॉजी के लिए टेक्नोलॉजी में GTU में कोशिश हो रही है। पटेल साहब से बात हुई थी कि साइंस और उसमें कैसे करेंगे, तो वो एक आगे लेने का हम सोच रहे हैं कि हर यूनिवर्सिटी जो है अपना एक खूबी रखता है साथ, जो पिछले बार भी बात हुई थी आप थे वहाँ पे, तो उसको थोड़ा मैपिंग करें। और एक बात मिनिस्टर साहब ने बताया था कि एक मीटिंग हम लोग सब चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ करेंगे और सब वाइस चांसलर के साथ। उससे पहले हम सोच रहे हैं कि उनको कुछ एक्शन एजेंडा दें। अब सर जैसे कि हर यूनिवर्सिटी में स्टार्टअप्स हैं और एंटरप्रेन्योर हो रहे हैं, लेकिन उनकी कोई डॉक्यूमेंटेशन या मैपिंग नहीं हुआ। तो अगर हम डॉक्यूमेंटेशन भी कर लें तो आज की तारीख में हमारे पास 500 से ज़्यादा स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर्स होंगे। अब ये डॉक्यूमेंटेशन हम यूनिवर्सिटी के द्वारा करवा सकते हैं और एक रिपोजिटरी बन जाएगा, तो उसको हम एक रिपोर्ट बना के प्रेजेंट भी कर सकते हैं यहाँ पे कि भाई पॉलिसी लेवल पे कैसे ले सकते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह थोड़ा सा आगे ले सकते हैं पुश करने के। सर ये जो स्टार्टअप रिपोजिटरी की बात है ये बहुत क्रूशियल चीज़ है। अगर हमको आउटरीच करना हो, अगर हमको जानना हो कि कौन से स्टार्टअप्स हैं एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटी से जो लास्ट 3 साल में बच्चे निकल गए हैं और उन लोगों ने कुछ स्टार्टअप चालू किए हैं, आई थिंक बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ने कोशिश की है ये बनाने की, बट बिकॉज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज विद इंस्टीट्यूशन दे आर नॉट एबल टू। बट इफ मिनिस्ट्री सेज टू यूनिवर्सिटीज कि आपके बच्चे एग्जिस्टिंग कितने एंटरप्रेन्योर हैं और आपके लास्ट 3 साल में जो एलुमनाई है उसमें से कितने एंटरप्रेन्योर बने हैं, किन लोगों ने कौन सी कंपनियां चालू की हैं, आई थिंक वो 1 महीने के अंदर वी कैन क्रिएट दैट डेटाबेस। वो डेटाबेस से वी कैन आउटरीच दिस पीपल, वी कैन ब्रिंग दिस पीपल फ्रंट। आज एक स्टार्टअप जाकर उसके खुद के कॉलेज में 500 बच्चों से बात करता है तो उसमें से 50 बच्चे इंस्पायर हो जाते हैं कि हाँ ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, एंड यू आर इमीडिएटली क्रिएटिंग अ जॉब क्रिएटर देयर। वो बंदा आकर जाकर जॉब देगा। आज जितने भी लोग बैठे हैं ऑल ऑफ देम हैव गिवन सम जॉब्स टू देयर ओन फ्रेंड्स, ऑल ऑफ देम। और हर एक की कंपनी एटलीस्ट 1-1.5-2 करोड़ के ज्यादा की वैल्यूएशन की है। शहर की कंपनी 30 करोड़ की वैल्यूएशन की है। सो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बट वी ओनली हैव लिमिटेड एग्जांपल्स। ऐसे फ्रेगमेंटेड एग्जांपल्स बहुत हैं। सो सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज अपने कर सकते हैं जो दैट इज बेसिकली टू क्रिएट अ रिपोजिटरी बाय आस्किंग ऑल यूनिवर्सिटीज टू इन्वॉल्व इन दिस।
Anybody want to open your comments in between? The depository should have the type of industry segment and the amount of. बिल्कुल बिल्कुल वो तो और sector specific. कॉम्प्रिहेंसिव भी बनाना पड़ेगा In that case, we should be understanding that which are typically startups or which are. and उसको as soon as it becomes, as soon as it's ad, you know, उसको public में public domain पे रखते जाए तो everybody can leverage that database. उसको private रखने की जरूरत नहीं है. Amount of money that has been invested initially and the type of potential it has for the future. और जरूरी भी है अभी सब इस सीट यहाँ पे है जो प्राइम मिनिस्टर जी ने अभी लंच किया तो उन्होंने गुजरात की कुछ सिलेक्टेड स्टार्टअप्स को मांग रहे थे एंड वी हैव ए लिमिटेड डिपॉजिटरी बट ही रिप्रेजेंटेड तो वो जाके वहाँ पे दिल्ली में मीटिंग में उसने अटेंड भी किया तो हमारे कुछ स्टार्टअप ऑलरेडी कर ही रहे हैं और वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं बट जब ये पूरा रिपॉजिटरी बन जाएगा देन वी विल हैव अ क्लियर पिक्चर क्लियर फिगर्स and that will bring in some accountability and some motivations and that will create some sort of sweet competition between the stakeholders at the top level, mid level and that may help us in that level. तो आपने से जिन्होंने काम किया है वो यहाँ से तेरा हम सबके लिए तो बिफोर आफ्टर ड्यूरिंग योर एक्सपीरियंस हमारे ध्यान पे रखने की कोई बात है जैसे बताया कि सभी यूनिवर्सिटी को हम जानकारी दें ऐसा भी हो सकता है कि सभी विशिष्ट के साथ भी एक अच्छी मीटिंग हो जाए तो उनके उनमें भी होगा उन्होंने कुछ छोटा मोटा काम भी सभी यूनिवर्सिटी ने हमारे किया है छोटा मोटा मगर एक इंटीग्रेटेड सब साथ में मिलकर एज अ स्टेट गुजरात एज अ स्टेट वी वांट टू रिप्रेजेंट सर या हम पहला स्टेट बन सकते हैं साहब डेमोंस्ट्रेट करने के लिए कि हमारे यूनिवर्सिटी ने 1000 एंटरप्रेन्योर बनाए हैं देखिए भैया बन सकता है तो हम बनना चाहते हैं तो आपने से कोई जरा स्टार्ट करें यहीं से स्टार्ट करें या इसको ही करेंगे हम ही में से कुछ वॉलंटियर्स जो हैं इसको जिम्मेदारी ले लें तो फिर हम पंकज साहब का रिपोर्ट बना के उसको प्रेजेंट करेंगे सर आई वुड लाइक टू ऐड दैट मेनी ऑफ दीस पीपल बहुत सारे लोग इसमें से खुद का टाइम बहुत दे रहे हैं दूसरे एंटरप्रेन्योर्स को कोच करने के लिए अपने खुद के कॉलेज में जाकर ये लोग बात करते हैं ताकि लोग अपना खुद का टाइम निकाल सकें दे आर ऑल ऑफ देम आर सम और द अदर वे हेल्पिंग द इकोसिस्टम और अगर हम और भी लोगों को ला सके इसमें आगे और इसमें अगर टॉप लेवल आपकी तरफ से इसमें पैट्रोनेज मिल जाए तो फिर तो हम जैसा मानता साहब ने कहा कि वी कैन एब्सोल्युटली मेक बिकम द स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया एंड वन ऑफ द टॉप 5 स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड ठीक है आपने जो बताया बात कि जो एग्जाम्पल्स आ रहे हैं हमारे सामने जो आ रहे हैं बच्चे को बहुत काम करेगा तो एक प्रोसेस किस तरह से हुआ क्या डिफिकल्टी आई क्या स्टेट से उनकी क्या अपेक्षा है चाहे फाइनेंस डिपार्टमेंट हो चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो जो भी है से और उसमें क्या करना चाहिए तो सर तो वो एक बात भी बताया साथ में सही बात है तो लर्निंग मिलेगा उससे हाँ उससे लर्निंग मिलेगा बिजनेस काफी और बढ़ेगा ये रेप्लिकेट हो सकता है अपने आप में आदमी को इंस्पिरेशन भी मिल सकता है बच्चे को हमारे साथ में था वही एग्जैक्टली और फिर आगे आ गए वो सब काफी मैटर करता है ऋतिक बताएगा पिछले बार जब आप मिनिस्टर साहब से मिला हाउ रियल चीज परसेप्शन हैज चेंज यस कल ही हमारी बात ऑन कीजिए उसको जी कल ही नंदा सर से बात हो रही थी कि एक्चुअली आई हैड पास्ड आउट माय इंजीनियरिंग फ्रॉम बीबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज विद्यानगर एंड देन आई स्टार्टेड माय स्टार्टअप सिंस 2 इयर्स सो तब से लेके जब मैं कॉलेज में था तभी भी मैं यही काम कर रहा था क्योंकि पढ़ाई तो पार्ट टाइम तो तब मेरे जो एचओडी थे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वो मतलब मुझे उस तरीके से ट्रीट कर रहे थे कि मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ सॉरी टू से इन पब्लिक लाइक दिस बट इट वाज माय एक्सपीरियंस जो मैं शेयर कर नाउ हाउ इज थिंग्स बट जब सर वो एलजे में आप वहाँ पे आए थे फर्स्ट इवेंट में एंड हम सब ने जो फोटोग्राफ खिंचवाई थी तो वो एक फोटोग्राफ मैंने आपके साथ ही फेसबुक पे शेयर की थी मैं सर के साथ इमीडिएटली नेक्स्ट डे उनका मुझे कॉल आया कि ये जो है साहब ये जो पैटर्नेज है आपकी है साथ की है आपकी टीम की है पंकज जी की है तो ये पैटर्नेज जो है बहुत बड़ी मैटर करता है ये लेजिटिमाइज कर रहा है आई थिंक स्टार्टअप तो पहले भी होते थे जब प्राइम मिनिस्टर जब से बोलने लगे तो ये प्रोफेशन को लेजिटिमेसी मिल गया है कि भाई ये जो कर रहे हैं बच्चे जो रिस्क ले रहे हैं ये अच्छी चीज है तो डेफिनेटली आई बिलीव कि अगर गवर्नमेंट की ओर से ये सारा सपोर्ट मिल रहा है ऐसा पब्लिक को जब रियलाइज होना शुरू हो गया ना जब से मोदी साहब ने शुरू किया और उसके बाद से जैसे सर ने स्टार्टअप गुजरात का शुरू किया और उस तरीके से मतलब जैसे जैसे तो इवन मेरे फैमिली के अंदर भी जब मैंने किया था तो बहुत सारी चीजें थी कि અમે તને એટલો ભણાવીએ છીએ તો હવે તારે તું નોકરી કરે માં બધું કરવાની શું જરૂર છે
और वहाँ से लेके जब ऐसे फोटोग्राफ्स मिले कि अच्छा तो चुडासमा साहेब સાથે તું હતો એ પણ એવું કહે છે કે સારું કરસ ના તો सर इससे बेसिकली क्या हो क्या रहा है, कल्चर बदल रहा है। सर्टिफिकेट मिल गया। हाँ, जब गवर्नमेंट इंटरवीन करती है ना तो उससे बेनिफिट क्या मिलता है कि बाकी पब्लिक जो है वो आपको सपोर्ट करने लग जाती है। जब गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है तो कल्चर इज चेंजिंग। इसी तरह कॉलेजेस में स्टूडेंट जैसे सर ने बोला तो वो रिकॉग्नाइज करेंगे, हमारे साथ पढ़ता था आज ये यहाँ पहुंच गया। तो जो वो इंटरवेंशन जरूरी है। जैसे हमारे हर एक कॉलेज में स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी में क्या होता है, प्लेसमेंट सेल होता है। उसी के साथ एक स्टार्टअप सेल हम लोग क्रिएट करते हैं कि जिसमें हम ये इनपुट डालें कि देखो यार इन लोगों ने स्टार्टअप्स क्रिएट किए तो ये जॉब क्रिएटर्स हो गए। जिस तरह हर यूनिवर्सिटी में क्या होता है, प्लेसमेंट जो कंपनीज देती है, जैसे IBM ने दिया, Amazon ने दिया, उसकी फोटो डालते हैं। उसी तरह हम एक साथ में पेज डालते हैं जिसमें जो स्टार्टअप्स की लोगोस जिन्होंने क्रिएट किए, जैसे इसका करियर खोजे तो इसके ही कॉलेज की फोटो डालें तो उस तरह रिकॉग्निशन मिलता है मल्टीपल लेवल। तो सर इसके लिए रिसोर्स नहीं चाहिए सर, कुछ ये तो हम सिर्फ एक पहले बात कर रहे थे कि उन प्रोसेसेस जिसके लिए रिसोर्स नहीं चाहिए, जिसको हम इमीडिएट रोल आउट कर सकते हैं, उनको हम इजीली गवर्नमेंट का एक डोमेन हो सकता है gujarat-startup.gov.in जिसमें सारे के सारे स्टार्टअप्स हम लिस्ट कर दें। इट इज वेरी इजी टू डू। सर कुछ नहीं तो एजुकेशन में स्टूडेंट स्टार्टअप्स का कर ही सकते हैं कि बेसिकली ये इनफॉर्मल टीम जो है स्टार्टअप्स की, वो उनका हमारा बहुत बड़ा डिस्कशन हुआ है कि जो प्रिविलेजेस और जो रिकॉग्निशन एक स्पोर्ट्स पर्सन को दिया जाता है कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, उतना ही प्रिविलेज और उतना ही रिकॉग्निशन एंटरप्रेन्योर को भी दिया जाए, क्योंकि वो आगे जाके आपके जॉब क्रिएट करने वाला है और जॉब डेफिसिट इज ह्यूज प्रॉब्लम। सो ये एक चीज होगी कि दैट कंबाइंस द कंपोनेंट ऑफ इंडस्ट्री, फाइनेंस एंड योर एजुकेशन। सर मेरा सर और एक चीज़ है इसके अंदर कि मतलब मेरा जो अभी तक का एक्सपीरियंस है उसके ऊपर से मैं इतना शेयर कर सकता हूँ कि कभी जब स्टूडेंट एक स्टार्टअप शुरू करता है तो उनको 3 चीज़ की जरूरत पड़ती है। 1 इज एम फॉर मनी, सेकंड इज एम फॉर मेंटरशिप एंड द थर्ड इज एम फॉर मेंटालिटी। तो यूनिवर्सिटीज हैं वो सारी जो चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मेंटरशिप प्रोवाइड करवा सकती है, मनी भी प्रोवाइड करवा सकती है, लेकिन जो मेंटालिटी वाली चीज़ है ना, इनसाइड कॉलेज, आउटसाइड कॉलेज, फ्रॉम दी फैमिली, फ्रॉम दी सोसाइटी, वो सारी चीज़ों में जब कोई स्टूडेंट ऐसा शुरू करने जा रहा होता है और वहाँ से जो नेगेटिविटीज उसको मिलती है तो समवेयर आई थिंक कि वो वहाँ पे उसको अटका देती है। तो इस इंस्पिरेशन लेने के बाद तब आपने सोचा आज जो डिस्कशन हो रही है आप सबकी इनपुट फोटोग्राफ्स को हमने डॉक्टर अग्रवाल से रिंकू से बात करने का 5 लाख बच्चों को मेल करेंगे तो एक मैसेज जाएगा कि सिस्टम केयर्स, मिनिस्टर साहब इन चीज़ों को गहरे से ले रहे हैं, तो इनकी टीम सिटी में बार बार लोगों से इंटरेक्शन कर रहे हैं डॉक्टर साहब। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि कम्युनिकेशन जो है, आउटरीच है, उसको थोड़ा करें। तो कम्युनिकेशन में एक बात जो पिछले बार सर ने कहा था, बाइसैक की जो चैनल्स की बात कही थी, हम सब कोशिश कर रहे हैं कि एक ओपन सोर्स एंटरप्रेन्योरशिप के लर्निंग के लिए हमारे पास अवेलेबल चैनल है। इतना एंटरप्रेन्योर्स हैं, कोई लीगल एक्सपर्ट बता सकता है कब कैसे कंपनी रजिस्ट्रेशन करना है, और ये पूरी जो वीडियोज को बना के हम एक लार्ज पूल ऑफ मूक बना सकते हैं। पर कोई भी स्टूडेंट ये कच्छ से आया है, अब कच्छ से बच्चा है उसको इनक्यूबेटर देने की जरूरत नहीं है, ही कैन गो थ्रू दिस कंटेंट्स, गो प्रिपेयर इट एंड डू इट। तो हमारे पास जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज है लाइक पैसा, हम सोच रहे हैं हो गया leverage करें, YouTube पे डाल दें। और आपका चैनल भी अच्छे से चल रहा है गवर्नमेंट के चैनल्स पे, वो वेबसाइट जो बोली gujarat-startup.gov, हमारे पास 16 चैनल है। अभी नई सरकार आने के बाद ही नरेंद्र भाई ने, उसके पहले 2 ही चैनल थे। तो मैंने साहब से जाकर बात की और सुनील से बात की, तो they have given us 16 and out of 16, 12 is under education. Okay. And luckily I am a chairman of. So then you can leverage it, sir. Yes, sir. हमने काफी 4-5 मीटिंगें भी की है मैसेज में, तो उपयोग पूरा करें। और बाकी के जो लोग हैं किसी का देख करके करना चाहते हैं, ऐसे भी लोग हैं, आपने हिम्मत की, आई अप्रिशिएट। बाकी के जो लोग हैं ऐसे भी हैं कि उनको सफल होने दो, विफल होने दो, फिर मैं करूँगा। तो आपकी सफलता के आधार पर वो आएंगे, तो ये बाइसेक का उपयोग हम कर सकते हैं डेफिनेटली। हाँ सर, नहीं वो आपको इससे पता पड़ेगा, वी कैन अरेंज ओके प्रोग्राम कि कॉलेज इसमें जाना है हमें तो बाइसेक आउटरीच टू देम और समथिंग। यस, तो एक बार कल जो बच्चों आ सकता है उनमें से, आप बताइए कौन से डेट पर करना है, आपको भी बुलाएंगे। So this can go to all and then you can create these contents. कोई भी यूनिवर्सिटी में भी प्रोग्राम जा सकता है वैसे, एक बात तो वो हो सकती है। दूसरी बात जो आपने बताई वैसे
प्रकाश आज ये जो 12th क्लास पढ़े हुए हैं बच्चे वैसे अभी जो कॉलेज में आ रहे हैं तो मोबाइल नंबर मेरे पास है सर ये जो हम संधान में काम कर रहे हैं जैसे मैं पहले रहा तो स्कोप का मैं दे रहा हूँ तो किसी तरह का आप अपना मैसेज भी छोटे भेज सकते हैं WhatsApp and all these things are very yes prominent WhatsApp पे तो लेकिन वो चला जाएगा SMS पे चली जाएगी हाँ चले जाएगा and they can see to ये वैसे उसके स्पाइरल इफेक्ट क्या होती है कि एक ग्रुप में तो कई बच्चे 3-4 ग्रुप रखते हैं वो मैसेज राइट that will be very good thing sir बहुत अच्छी बात है अगर 5 लाख स्टूडेंट्स को अगर जाता है ये बात और 1% कन्वर्शन रेट को हम हमेशा बेस्ट सक्सेस मानते हैं then also obviously it will be very good thing to go ahead I think sir जो सारा जो आपने बताया ना जो existing channels हैं existing databases हैं हर यूनिवर्सिटी के पास रिपोजिटरी होगा प्रोफेसर्स होंगे and once we start communicating properly तो ये जो 2 million stakeholders हैं हायर एजुकेशन में और सेकेंडरी एजुकेशन में टीचर स्टूडेंट इससे मिला के that get sensitized and this they will start talking about and we can go to next stage સર આપણું ગુજરાત સરકાર મહોત્સવ માટે આખા દુનિયાભરમાં જાણીતી છે પણ એક સ્ટાર્ટઅપ મહોત્સવ કરવો જોઈએ જેમ શાળા પ્રવેશોત્સવ અમે ગરીબ બાળકો જોડે કામ કરીએ છીએ મ્યુનિસિપાલિટી સ્કૂલમાં તો શાળા પ્રવેશોત્સવથી ઘણો બધી ફરક પડ્યો છે ઓલરેડી એવી રીતે જો એક સ્ટાર્ટઅપ મહોત્સવ થાય તો એમાં બે મેઇન વસ્તુ હોવી જોઈએ એક કે ભાઈ સ્ટાર્ટઅપ દરેક ઇટ ઇઝ નોટ એવરીબડીઝ કપ ઓફ ટી સો બધા ગાણા ભરીને એની પાછળ દોડે એ બી યોગ્ય નથી અને સો એક બેઝિક સેન્સિટાઇઝેશન થવું જોઈએ સ્ટુડન્ટ્સનું કે એકચ્યુઅલી સ્ટાર્ટઅપ શું છે તો એમાં જેમ આપણા પ્રાઇમ મિનિસ્ટરે કહ્યું કે એમણે યોર સ્ટોરી છે કે અમુક જે સોશિયલ મીડિયાની જે બહુ જ વધારે વાયરલ ચેનલ્સ છે એમની જોડે ટાઈપ્સ કરી દીધા અને એમાં નાની નાની 1.5-2 મિનિટની ક્લિપિંગ્સ ફરે છે અત્યારે કે ભાઈ એકચ્યુઅલી આખો જે પ્રોગ્રામ થયો તો એનો તાત્પર્ય શું છે એ કયા કયા એન્ટરપ્રિન્યોર્સ માટે એ લાગુ પડે છે આજે મારી કંપનીનું 2 કરોડનું ટર્નઓવર છે તો હું સ્ટાર્ટઅપ કહેવાઉં ના કહેવાઉં એ અમુક બેઝિક બહુ જ જે જરૂરી મુદ્દાઓ છે એના વિશે જાણકારી મળવી જોઈએ હવે આજની તારીખમાં કોઈ મને પૂછે કે હું 1.5-2 વર્ષથી અમદાવાદ સ્ટાર્ટઅપ ઇકોસિસ્ટમ જોડે જોડાયેલ અમદાવાદમાં કેટલા સ્ટાર્ટઅપ્સ છે તો સ્ટાર્ટઅપનો માપદંડ શું સ્ટાર્ટઅપ કોને કહેવાય એનું એક સરકાર તરફથી એક ક્લેરિટી મળવી જોઈએ એક ક્રાઇટેરિયા હોય જેમ આપણે એસએમઈઝ માટેનું છે કે ભાઈ લાર્જ સ્કેલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ માટેનું છે તો એક સ્પેસિફિક ક્રાઇટેરિયા હોવો જોઈએ so that the right people can get the right benefits અને એક આ સ્ટાર્ટઅપ મહોત્સવ થવો જોઈએ ફોર ધ સ્ટુડન્ટ્સ જેમાં બધી યુનિવર્સિટીઝ ગુજરાતની જોડાય અને એક આપણે એક સ્ટાર્ટઅપ ડે બી ઉજવીએ સો દેટ અને હું કહું છું એક સ્ટાર્ટઅપ રથ જેવું બસ બી આપણે કારણ કે આપણી પાસે વી હેવ સક્સેસફુલ રોલ મોડેલ પ્રોજેક્ટ પાયલટ પ્રોજેક્ટ फाइनल का स्टूडेंट है सर नहीं ये पहला आपने बात करी થઈ જાય યુનિવર્સિટી પાસેથી દાદા કોણ છેલ્લા 3 વર્ષમાં જે ગ્રેજ્યુએટ બહાર પડ્યા એમાંથી શું થયું છે એ પણ ત્યાં આવે તો પછીથી અમારા માટે ખૂબ મોટી જે કહી શકાય એ વાત થઈ ગયા છે આપણી પાસે સર માપદંડ સર what is the criteria yes who can be called the startup whether I am a startup or not I want to be a startup what I have to do બરાબર એનું ક્રાઇટેરિયા ये बताओ मैं बेसिक जो मेजरमेंट टूल्स हैं वो सब हम एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से बना सकते हैं जरूरी नहीं कि रेवेन्यू पे हो તમે એક કામ કરો ને તમારા મનમાં જે હોય એમ લખી નાખો ठीक है ओके કે આને સ્ટાર્ટઅપ કહેવાય हां એટલે અમારું સ્ટાર્ટઅપ જ છે then we can discuss on that અમારું સ્ટાર્ટઅપ જ છે તમે ઓલરેડી યુ હેવ સ્ટાર્ટેડ I think sir those limitations are there you already started breakfast please start breakfast sir I think even support in that scenario giving you the what are the basic definition how the startup is defined across the globe and how it is typically defined must be on the website sir I think I can certainly I'm working on some terms of that area I'll certainly pass on that report to you that how worldwide people are defining startups and how is it in that scenario we will do it डीडीआई को साथ हम इन्वॉल्व कर रहे हैं थोड़ा सा हैंडहोल्डिंग करने की यूनिवर्सिटी चाहिए हां तो जो एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटीज हैं उनको थोड़ा हैंडहोल्डिंग चाहिए राइट या sir was there in our program I know that yes so I think I can yes please share yes yes આપણે એજ્યુકેશન પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ થી નવી ઘણી કરીએ સ્ટાર્ટઅપ બને કે કેટલા સિનિયર્સ સુધીને 12 વર્ષ સુધી વેટરન સુધી જવા માટે ઇટ ઇઝ ઓલરેડી બ્રોડલી
already defined in our starting there. All the parameters will be incorporated. હવે ઓલરેડી આપણે જે 12 સેન્ટર્સ આઈડેન્ટિફાઈ કરેલા છે નોડલ સેન્ટર્સ ફોર સ્ટાર્ટઅપ ઇન્ક્લુડિંગ એલજે જે આપણે એલજે ગવર્નમેન્ટ લિસ્ટ આપણે જોયું તો ડેફિનેટલી એ લોકો પાસે પણ એક સારો ડેટાબેઝ તો છે જ એ આઈઆઈએમ છે આપણા જીપીયુ પણ છે ઇવન એનઆઈટી પણ છે તો એવા 12 આપણા જે સ્ટાર્ટઅપ નોડલ સેન્ટર પાસેથી પણ આપણે ડેટાબેઝ ઓલરેડી દેવ સ્ટાર્ટેડ સમ એક્ટિવિટીઝ તો એની પાસેથી પણ એક ડોક્યુમેન્ટેશન આપણે સારું એનો બીજું વિશેષ મીટિંગ આ 12 નોડલ સેન્ટર્સના પ્રતિનિધિઓને પણ આપણે જેથી કરીને આપણે સારું ડોક્યુમેન્ટેશન What we can focus more on is student start, क्योंकि उसकी बहुत जरूरत है अभी गुजरात में. आप अगर देखेंगे तो look at outside ecosystem of the world. US में बच्चे 17-18 साल की उम्र में कुछ ना कुछ नवा करना स्टार्ट कर देते हैं. इंडिया में जब तक वो ग्रेजुएट होते तब तक उनको कुछ पता नहीं स्टार्टअप. नाउ दे टेक अ जॉब. 6 महीना उनको मजा नहीं आया, देन दे डू समथिंग. तब तक उनकी शादी की उम्र हो जाती है. So experiment. If we start for encouraging the students to do from first year, तो यूनिवर्सिटी के एजुकेशन डिपार्टमेंट कैन फोकस मोर ऑन स्टूडेंट स्टार्टअप. इसमें बेनिफिट भी क्या होता है, एवरेज एज ऑफ डूइंग बिजनेस तो रिड्यूस हो गया है. अभी 18 साल का बच्चा भी बिजनेस कर सकता है जो 100 करोड़ की कंपनी खड़ी कर सकता है. तो चांसेस कैन बी रेयर, पर ये एवरेज एज कम हो गया, उसमें जो फेलिंग प्रोबेबिलिटी है वो आपको 2 चांस ज्यादा मिल जाते हैं लाइफ में करने के. तो ये उस स्टूडेंट स्टार्टअप में एक बेनिफिट है जो हम क्रिएट करना चाह रहे हैं. कुमार आपका कोई पॉइंट? GTI policy, they already has anyone analyzed that policy? So what do you feel about that? So Pankaj, the point is like this. So most of these policy which had been designed was more towards technology campuses. It worked well. So 3 fundamental points that we looked at. One is it should be giving a decentralized support system. For example, अगर मान लीजिए कि वलसाड़ में स्टूडेंट्स है और अहमदाबाद में है, एक्सेस पॉइंट्स इक्वल होनी चाहिए, वो एक फंडामेंटल पॉइंट है. दूसरा था कि कॉलेजेस में सोचते थे कि प्री इंक्यूबेशन का बेसिक सिस्टम बन जाए. एक 50 का स्क्वायर फीट का जगह है, जगह जहाँ वर्कशॉप है और वहाँ पे लेट द स्टूडेंट्स बिल्ड इट, और जैसे ही वो एक मेरिट लेवल पे आए तो यूनिवर्सिटी का इंक्यूबेशन सेंटर हो या यूनिवर्सिटी का रीजनल सेंटर्स हो, वहाँ वो आ जाए. थर्ड पॉइंट ये था कि बहुत ज़्यादा को करिकुलर इंटरवेंशंस को हमने साथ लगाने के लिए कोशिश किया था, पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट सर को करिकुलर से आया. अभी तक करीब एसीपीटी सेंटर में पिछले साल हमने डाटा एनालिसिस कर रहे थे, 50,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स वहाँ पे आके अटेंड करते हैं. और आप भी जब आए थे तो एक चीज़ जो आप जूनागढ़ से कच्छ से आते हैं, फ्राइडे को रात को निकलते हैं, सैटरडे को कैंप अटेंड करते हैं, तो हम सोच रहे थे कि उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का सबसे बड़ा ये था कि हम डिसेंट्रलाइज कैसे करें. सो वन ऑफ द एरिया इज टू हाउ टू डिसेंट्रलाइज दैट, ताकि हम उनको ना लें, सर्विस को वहाँ पहुँचे. और उसमें जो था हमने उसमें पॉलिसी में फाइनेंशियल एस्पेक्ट को इतना ज़्यादा फोकस नहीं रखा था. हमने सोचा था कि कॉलेज डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी में जो इंटरनल रिसोर्सेज हैं और इंटरनल विजिबिलिटी है उसको ही लीवरेज करते हैं. तो आई थिंक सर ऑपरेशनली वी आर इनटू आई थिंक 20% और समथिंग आप कह सकते हैं उसको ऑपरेशनल लेवल पे दे पाए उसमें से. बट गुड थिंग वाज अगेन मोर प्रोसेसेस, लेस इंफ्रास्ट्रक्चर्स has been a big achievement for that sense. But yes, I think to implement that we also need some kind of push from the top. तो इसमें ऐसी बात हुई थी कि जब उसमें पुलिस ने हमने कहा था कि अगर सिटी सेंटर में एक जगह मिल जाए बड़ी शहरों में जैसे राजकोट या सूरत में, तो कॉलेजेस तो गांव के एरिया में जनरली होता है, तो उनको क्लास के बाद वो बच्चे आ पाए. तो साहब हमने उस लेटर को सब म्युनिसिपल कमिश्नर्स को भेजा था तो यहाँ से, तो राजकोट की म्युनिसिपल कमिश्नर ने कहा कि ही हैज लोकेटेड अ स्पेस. वो 50 कॉलेज के प्रिंसिपल से बुलाया, बात की, बोले कि आप बच्चों को यहाँ भेजो और हम उसको फर्निश कर देंगे, लेट यूनिवर्सिटी टेक द मेंटेनेंस एंड ऑल दिस थिंग्स. तो अगर ऐसे सोशल इंक्लूजन आ जाए इन टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन कि द म्युनिसिपैलिटी कम्स इन, द नियरबाई कॉलेजेस कम्स इन, द यूनिवर्सिटी कम्स टू द मैनेजमेंट, तो वो जो आसपास की जो सोशल स्ट्रैटा है वो इन्वॉल्व हो जाता है. तो हम सोच रहे थे कि 4-5 जगह जैसे सूरत है, बड़ौदा है, एंड यूनिवर्सिटी को डिस्कस कर रहे थे कि वी कैन टेक केयर ऑफ द रिसोर्सेज इन मेंटेनेंस एंड रनिंग, पुटिंग सम पीपल टू ऑपरेशनलाइज, वो कैन डू इट. तो ये एक चीज इसको आगे ले सकते हैं. और बहुत जगह में आपकी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वहाँ पे, जैसे एलवी वहाँ पे. सर આમાં સમજી કે છે ને એમાં આપણે જે 12 સેન્ટર થાય છે સર, આઉટ ઓફ 12 11 અમદાવાદમાં છે, એક ગણપત યુનિવર્સિટી ખેરવામાં છે. હવે આમાં બધા જ છે, માઇકા છે, આપણે આર્ટ સાયન્સ કોલેજ ની કે અમદાવાદ યુનિવર્સિટી છે, જીએલએસ કેમ્પસ છે. આ બધાને સાહેબ દે હેવ ઓલરેડી સ્ટાર્ટેડ ફંડિંગ, ધીસ ઇઝ ડિપાર્ટમેન્ટ હેઝ સ્ટાર્ટેડ ફંડિંગ. અને એમાં સર જે પસંદગીની ક્રાઇટેરિયા છે, ઘણા લોકોને એવું હોય છે કે સ્ટાર્ટઅપ માટે વી આર પ્રોવાઇડિંગ ઇન્ક્યુબેટર્સ, ઇન્ડસ્ટ્રી ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ ધ ફેસિલિટીઝ જુએ છે, કેટલા કોમ્પ્યુટર સેન્ટર છે, કેટલી તમારા પાસે સ્પેસ છે, શું ફેસિલિટી છે. ઘણા વખત સાહેબ એની જરૂર નથી હોતી, પણ એમાં સ્ટાર્ટઅપ તરીકે કમી કેવી રીતે થાય છે? તો
આ હવે ધારો માયકામાં એ લોકોની કમિટી નક્કી કરે આ સ્ટાર્ટઅપ અને આપણી ગવર્મેન્ટમાંથી ફંડિંગ જતું રહ્યું એટલે જે રિયલ સ્ટાર્ટઅપ કોઈ બહાર લોકેશન પર કરે છે અમદાવાદની બહાર જો નહીં હે એમાં આવશે કેવી રીતે એન્ડી નો કોઈ છોકરો છે એ બહુ સારું સ્ટાર્ટઅપ કરે છે હવે અમે કાં તો જીટીયુ એમાં આવી શકીએ અથવા ગમે તેવા એમાં આવી શકીએ તો એમાં હાઉ ટુ એન્ટર ઇન ધીસ ઇન્ડસ્ટ્રી ડિપાર્ટમેન્ટ ડિફાઇન્ડ સ્ટાર્ટઅપ સેન્ટર ફંડિંગ તો બધું સરકારનું એમના મારફતે જાય 10 લાખ પ્રતિ સ્ટાર્ટઅપ અને 10,000 રૂપિયા પ્રતિ મહિના સ્ટાઇપેન્ડ તો એની સ્કીમમાં ये लोगों ने आपकी दी हुई तुम्हें सफर जाते हो आप स्टार्टअप ले जाओ 10,000 रुपया वर्ष सुबह से दर महीने हाँ सर असिस्टेंट है जो पढ़ाई कर रहा है तो खर्चा जो है उसका ये इंक्यूबेशन सेंटर का एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि अहमदाबाद ग्लोबल शेपर्स हम लोग पूरा एक सर्वे कर रहे हैं लोकल जो एंटरप्रेन्योर्स हैं अहमदाबाद का इनिशियल फाइंडिंग से वैसा बता रहा है कि 80% जो स्टार्टअप्स हैं दे आर नॉट इंक्यूबेटेड दे आर नॉट पार्ट ऑफ इंक्यूबेशन ના માટે આપણે બોલા ક્યુબિકલ બોક્સ બની છે આપણે ઇન્ટરનેટ વધારે જરૂર મારે તો સામાન્ય રીતે એકેડેમિક પર્સન તરીકે શોધર તો આપણે 10 બાય 10 નો સરસ રૂમ ઇન્ટરનેટ અને બધી ફેસિલિટી આપી એટલે ઇન્ક્યુબેટર થઈ ગયું આ ઇઝ ધીસ ઇન્ક્યુબેટર વિચ ગ્રો ધ allow to grow this startup तो ये जरूर नहीं होगा घर में बड़े फैसिलिटी होए सर एक काम कर सकते हैं आई लाइक टू ऐड दिस थिंग हम एक साथ जितने यूनिवर्सिटी में जो सेंटर्स हैं जो इंक्यूबेटर एक्जिस्टिंग है हम एक स्टडी रिपोर्ट जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने हमको कहा था और हम उसको एक प्रेजेंटेशन भी करने वाले तो उसको जो है हम लोग कुमार वी कैन टेक दैट उसकी इन्फ्लुएंस को लेकर 3 लेयर का सिस्टम बना सकते हैं कॉलेज लेवल की बेसिक सपोर्ट जोन और सिटी लेवल की जो कॉमन सपोर्ट 15-20 कॉलेजेस के लिए और सेंट्रल लेवल पे इंक्यूबेटर सो दैट वो सप्लाई लाइन जो है वो प्रॉपर फिट हो जाए सर दूसरी बात ये भी है कि बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम आ रहा है वो मेंटरशिप का है बिकॉज़ अतीत और मैं हम लोग एक इनिशिएटिव स्टार्ट की क्राउड फंडिंग इनिशिएटिव विद जीटीयू गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी और हमने क्या रियलाइज किया करियर खोज भी हमारे क्राउड फंडिंग का ये सक्सेसफुल केस स्टडीज है और हम लोगों ने ऑलमोस्ट 100 यंग स्टार्टअप्स को रीच आउट किया और सबसे मेजर जो प्रॉब्लम आ रहा है जो एजुकेशन सिस्टम में जो एंटरप्रेन्योर को प्रिपेयर करने का है सो वी नीड सम काइंड ऑफ मॉड्यूल बेसिक मॉड्यूल कि भाई आप अगर स्टार्टअप्स हैं बेसिक फीचर्स क्या हैं इट हैज टू बी पार्ट ऑफ द सिलेबस इन सम वे और अदर बिकॉज़ अंटिल अनलेस दे डोंट पढ़ेंगे नहीं इनके लोगों के बारे में वो जानेंगे कैसे तो एक ट्रिगर फैक्टर चाहिए एजुकेशन सिस्टम पॉलिसी में इन सम काइंड ऑफ इनिशिएटिव इट हैज टू So yes can comment on that because he published a paper which is globally renowned in that area. Could you comment on that? So we did one research in 2013 and it was the only one which was done. We did it in 24 different states in India, including Gujarat. And in this research what we found out is that and all kinds of colleges were a part of the sample space. We had centrally funded IITs, we had NITs, and we had private colleges and self-financed colleges as well. What we found in that research was that most of the colleges do not offer entrepreneurship courses, okay? And if they do, this was like 90% of them were not offering any entrepreneurship courses. Those who were also providing a very theoretical knowledge. There was nothing hands-on. Exam oriented. They were not even covering some of the basic concepts which are contemporary and known around all the ecosystems around the world. If you want, we can share that presentation with you. That cannot take you to the real entrepreneurship. You Yes. can grade the exam. Yes, but and we found something else also. We found that 80% of the students who were exposed to mentors and their alumni startups, they were more likely to start up. So we found clear relationship between those who want to start up and those who have actually seen somebody starting up in their own vicinity. So it's like, so that's one part. And second, mentorship from successful startup entrepreneurs is very, very important. Now my problem is, and I think it's very pessimistic, but there is not a single startup who has through these startup circles reached a 2 crore valuation in has reached a 2 crore funding round in Ahmedabad. Not one in last these many years, not one. We have hardly been able to reach 1 crore of funding for a very few startups in this ecosystem. In the seed level. In the seed level. So what we are facing is that there are very few startup founders who have themselves gone ahead and done it. So we have a lot of people in the ecosystem who have not themselves started up, and so there is a lot of mentors out there. But these are not the ones who have actually gone ahead and done it themselves. But यहाँ एक yes जो मिनिस्टर साहब ने पिछले मीटिंग में कहा था जो इंडस्ट्री चैम्बर्स हैं उनकी जब साहब मीटिंग करेंगे उनकी जो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो एक्सपीरियंसेस है वो लोग एक अच्छा रिपोजिटरी हमको दे सकते हैं तो इंडेक्स टीवी में भी हेल्पिंग अस
तो उनके तो एक तरफ ये 1000 स्टार्टअप जो स्टूडेंट है उनकी लिस्टिंग करके, दूसरी तरफ जो ऑफर करेंगे इंडस्ट्री चैम्बर से कि हमारे पास सप्लाई का एक्सपीरियंस है, हमने लीगल का एक्सपीरियंस है, इतने आईपी लॉयर्स है, इतने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, उनकी एक मेंटरशिप पूल बना सकते हैं जो इन सेंटर्स में आके उनके लिए अगर 1 घंटा 1.5 घंटा मेंटरिंग करें तो मुझे लगता है वो एक बहुत बड़ा बूस्टरअपिंग हो सकता है। और वो हमारे पास तो सब 28,000 एसएमई रजिस्टर हो रहे हैं हर साल में, तो वो जो एक्सपीरियंस इंडस्ट्रियलाइजेशन का है उसको मुझे लगता है इसके साथ इन्फ्यूज कर सकते हैं अच्छे तरीके से। और दे आर इन दिस मीटिंग, और मिनिस्टर साहब ने कहा था एक मीटिंग करिए उनके साथ वो कर सकते हैं। एक पॉइंट उसके बाद हाँ इलेक्शन बट अभी कर लेंगे सर उसको, अभी कर एक पॉइंट को क्रिएशन पे પહેલા સાહેબ અત્યારે હું એનજી ગ્રુપ ઓફ કોલેજીસ રિપ્રેઝન્ટ કરું છું, સાથે સાથે ઇન્ક્યુબેશન સેન્ટર ચલાવીએ છીએ અને સાહેબ એક વન ઓફ ધ નોડલ એજન્સીસ બી છીએ અમે લોકો. અમારે ત્યાં આનું મહત્વ છે, પણ હવે એ જે 2 વર્ષની પીડા છે ને બહુ જબરજસ્ત હતી અમારે, એમાંથી લર્નિંગ બહુ થયું છે કે એજ્યુકેશન ઇન્સ્ટિટ્યૂટને શું તકલીફો પડે છે આને આગળ લઈ જવામાં. એટલે અમે બહુ સાદું માનીએ છીએ કે આ છે સાહેબ ડાર્વિનના ઉત્ક્રાંતિવાદ જેવું છે કે પહેલા હેડમાસ્ટર અને સ્ટુડન્ટ્સ જ હતા, એટલે ટીચર અને સ્ટુડન્ટ હતા, પછી એમાંથી ઇવોલ્યુશન થતા અત્યારે પ્લેસમેન્ટ સેલ સુધી બધા સીમિત છે. હમણાં કોઈ જે કહ્યું ને કે સ્ટાર્ટઅપ સેલ હોવો જોઈએ, એ સ્ટાર્ટઅપ સેલ જ્યારે તમે ત્યાં એસ્ટાબ્લિશ કરો છો ને એટલે એક થોડું વાતાવરણ બને છે કે ના આપણે ત્યાં થોડું મહત્વ મળશે. હવે અમે જે પ્રોબ્લેમ્સ ફેસ કર્યા ને સાહેબ એમાં એવું થાય છે કે છોકરાની તૈયારી હોય છે અને અમારે પણ પેરેન્ટ્સને પ્રોબ્લેમ હોય છે. હવે આપણે યુનિવર્સિટી તરફથી આવા કોઈ સર્ક્યુલર આવે કે આ છોકરાઓને આગળ વધારવા માટે કોઈ એવું કોઈ ઇન્જેક્શન મળે કે ના એ લોકો કરે તો વાંધો નહીં આવે એમને, તો શું થાય પેરેન્ટ્સને અમારે કન્વિન્સ કરવા પડે છે. अच्छा पेरेंट्स ने कन्विंस करवाने साथे साथे टीचर्स ने भी को कन्विंस करवा पड़े છે, કારણ કે ટીચર્સ તો આપણે એવું જ છે કે સારું ભણીશ તો જોબ કોણ આપશે, પહેલા તો આ જે મેન્ટાલિટી છે ને એ બહુ જુદી પડે છે. આપણે આમાં જે ગયા રવિવારનું ગુણવંત શાહનું જે આર્ટિકલ આવ્યો છે ને એ નોકરી ઉપર જ છે. નોકરી એ ગુલામી જ કહેવાય. એ આપણા સ્ટુડન્ટ મેં તો મારી કોલેજમાં સર આખું સર મુકાવડાવ્યું કે વી આર ઓલ તે જોબ ઓરિએન્ટેડ કલ્ચરમાં જ આપણે આખું ગુણ કરતા થઈ ગયા છીએ. તો ગવર્મેન્ટનો મોટો એન્ટીનો છોકરો છે એના બધા સારી કંપનીઓ જોબ મળી જાય છે. એટલે અને મેન્ટર માટે બી એવું છે સાહેબ કે સારામાં સારા મેન્ટર્સ તમારે આવી બનાવ્યા છે સાહેબ. જો એને ટાર્ગેટ કરીએ તો એમની એક જે છે ને એમની નિષ્ઠા હોય છે કે અમારી ઇન્સ્ટિટ્યૂટને પાછું આપવું, એટલે અમારી પાસે ઘણા બધું મેન્ટર્સ જૂના એમ બનાવ્યા છે, એટલે અમે એમનો ઉપયોગ સૌથી વધારે કર્યો, એટલે અમારે ત્યાં વાતાવરણ થોડું સારું બન્યું છે. આ મેન્ટર્સ ઘણા સારા મળ્યા છે, એટલે એલ્યુમનાઈનો રોલ બહુ જ સારો પ્લે કરે છે આની અંદર. તમે જેમણે પણ કામ ચાલુ કર્યું છે, જેમ તમે એજીમાં વાત કરો છો, तो जिन लोगों ने काम शुरू किया है वो कौन से सेक्टर में यू स्टार्टेड योर वर्क विद इन करोड़ रुपीज, 2 crore rupees, 5 crore rupees, in which sector you have started and what is the difficulty you are facing, by which I can help you as a Department of Education or Department of Industry, my colleague Sarabjit Patel, University, ये सब मिला के हमें ओपनली आई से आई एश्योर यू एज अ गवर्नमेंट, आई एश्योर यू कि एज अ गवर्नमेंट वी वांट टू एनकरेज यू, वी वांट टू सपोर्ट यू. इट इज इन अवर इंटरेस्ट, इट इज इन अवर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, इंटरेस्ट ऑफ अवर बॉयज और एम्प्लॉयमेंट. तो हम सबको मिलकर करना है. आपने जो बताया ना, हम सबको मिलकर करना है. हाँ सर. और उस सबको मिला के जो करना है तो मेरा डिपार्टमेंट ये सब करेगा. डोंट वरी, वी वांट टू गो अहेड. और उसमें ओनरशिप का एक बीजू है, एक थोड़ा मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ. बिकॉज इंडियन सिस्टम है कि जब तक डंडा नहीं पड़ता है तो काम होता नहीं है. एज ए दूसरा भी है आरंभ शुरा, दूसरा भी है आरंभ शुरा, स्टार्टअप में भी साथ में तो एक सिंपल सिस्टम क्रिएट हो सकता है जो बाकी सब चीज अपने आप अपने जगह पर सेटल हो जाएगा. अगर आप एक नोटिफिकेशन लिखा है कि ऑल कॉलेजेस शुड हैव स्टार्टअप सेल व्हिच इज एंड उनका परफॉर्मेंस मेजर चेक किया जाएगा कि हर every year how much students are using that facility. कॉलेज पे करने से पहले हम यूनिवर्सिटी में करें, फिर बाद में कॉलेज तक it would be more better to implement. Right. यूनिवर्सिटी सेल शुरू कर सकते हैं. एक रिव्यू से स्टार्टअप सेल एंड सर दूसरा लेट मी कंप्लीट इट. एंड दूसरा के every 6 months
there should be a startup उत्सव जैसे बोला, because उसमें क्या हुआ कि हर यूनिवर्सिटी अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए, मान लीजिए कोई यूनिवर्सिटी है आया नहीं, तो स्टूडेंट के बीच में बात चलती है, वर्ड ऑफ माउथ, कि यार यहाँ तो कुछ होता नहीं है. Even you will say that हाँ out of 20 universities from Gujarat only 10 has done. That is 10 अपने आप को प्राइज लेगा, बाकी 10 सोचेगा यार हमको भी करना पड़ेगा, तो नेक्स्ट टाइम हम नहीं आएंगे. विशाल जी की बात को थोड़ा सा मैं वो क्या हो एक इनडायरेक्टली कंपटीशन क्रिएट करेगा अमंग द यूनिवर्सिटीज दैट हैविंग नेक्स्ट टाइम इवैल्यूएशन करेंगे और रिव्यू करेंगे. हाँ, उसमें सर जी ऐसे कर सकते हैं, हम एक बेसिक सिंपल फ्रेमवर्क बना के बिफोर द वाइस चांसलर्स मीटिंग वी कैन सबमिट टू देम कि व्हाट एक्शन हैज बीन टेकन, व्हाट इंपैक्ट हैज कम, एक बेसिक बना के अभी दे दें. जब वो मीटिंग करेंगे वाइस चांसलर साहब के साथ सबकी, कि अगर वो आ जाए तो हमें एक क्लियर स्टैंडिंग पता चलेगा कि कितना हो चुका है, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, कौन सी जगह पे हुआ है. तो मुझे लगता है जो टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं उसको ही स्केल करना एक आसानी हो जाएगी. बट ये स्टार्टअप उत्सव इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ बहुत कुछ है ना कागज के अंदर छुपा सकते हैं, पर जब भी परफॉर्मेंस होगा ओपन पब्लिक के सामने, तभी जो चांसलर है वो छुपा नहीं सकते कि यार हमने कुछ किया नहीं है, उसको दिखाना पड़ेगा. तो ओपन करने के लिए जरूरत है कि सो दैट देयर इज अ प्रेशर ऑन द चांसलर्स यूनिवर्सिटी दैट दे शुड बाकी બીજું સર કે ખાસ પોલિસીસ ઘણી બધી બની ગઈ છે, ઘણી બધી બની રહી છે. બહુ મોટો સવાલ છે બધી પોલિસીસને ગવર્નમેન્ટ ઇન્ટિગ્રેટ કરવાનો, કારણ કે ક્યાંક ને ક્યાંક ગેપ રહી જાય છે. કે સાહેબે કહ્યું કે નોડલ એજન્સીમાં સર હજી સોરી ટુ સે પણ હજી ટોટલ ક્લિયર કટ નથી થાય, એટલે મારી પાસે હોવા છતાં હું નથી કરી શકતો. બરાબર છે. અને આ સાહેબ આ સ્ટેપ જે છે ને ઇન્ડસ્ટ્રી ડિપાર્ટમેન્ટે જે લીધું છે, ગવર્નમેન્ટે જે લીધું છે ને, એટલું સરસ સ્ટેપ છે કે ક્યાંય સાહેબ લેવાયું નથી. 10,000 રૂપિયા પર મંથ આપતા હોઈએ તમે, 5 લાખ રૂપિયા સુધી મેન્ટરશિપના રૂપિયા પર યર એ ઇન્સ્ટિટ્યુશનને આપે છે, પણ અમુક નોર્મ્સ હજી ડિફાઇન કરવાના બાકી છે. અને બીજું આ એજીમાં જાય એટલે અમે લોકો બી બહુ ડરીએ છીએ. બરાબર છે, એક રૂપિયો અમારે સાચવીને વાપરવાનો છે, પણ અમારી પાસે જ્યાં સુધી ક્લિયર કટ પોલિસી નહીં આવે ત્યાં સુધી અમારા હાથ બંધ. જો સાહેબ એ આવશે ને તો બહુ મોટો ચમત્કાર છે, એમાં ક્લેરિટી આવશે. તો કારણ કે અત્યારે શરૂઆત મહત્વની બહુ જ છે. આ લોકોને સાહેબ શરૂઆતના લાખની જ જરૂર છે, પછી તો પોતાની રીતે કરી જ લેવાના છે. જેનામાં ખુન્નસ છે ને એ તો કરે જ છે, એને કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી થતો. આ લોકો જ્યાં બેઠા છે એ પોતાની રીતે બેઠા છે. પોતાની રીતે આ બધા જે બેઠા છે ને એ લોકોમાંથી સર અમારે આપણે કોલેજીસમાં શું થતું હોય છે કે મોટાભાગના વર્ષમાં સેમિસ્ટરમાં 2 એક્ઝામ થાય અને આખા વર્ષમાં 4 એક્ઝામ થાય. અંડર ગ્રેજ્યુએટ છોકરાને જો આપણે સ્ટાર્ટઅપમાં લાવવું હોય ને તો આપણે આઈડીપી ચાલુ કરી ઇન્ડસ્ટ્રી પ્રોજેક્ટ જીટીયુ અને ફાઇનલ યર પર પ્રોજેક્ટ આવે છે. તો ફાઇનલ યર પર છોકરો છેલ્લા વર્ષમાં આવે ત્યારે સ્ટાર્ટઅપમાં એન્ટર થાય. ધીરજભાઈ સાહેબ એલડી માં જે પ્રેક્ટિસ કરી ઇનોવેશન કાઉન્સિલમાં, એ સૌથી બિગિનિંગ એ બધું ફાઇનલ યરના પ્રોજેક્ટને છોકરાઓમાં આવે અને એ પ્રોજેક્ટમાંથી જ કે કેવું થાય કે પ્રોજેક્ટ આગે કરવાનો એક નાનો ફેરફાર. અત્યારે એ વસ્તુનો જો આપણે ચેનલાઇઝ કરીએ ને, આપણી જે 50,000 છોકરાઓ જે ફાઇનલ યરમાં હોય છે એ લોકોના જે પ્રોજેક્ટમાં અત્યારે સાહેબ મોટા ભાગના ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં આ પ્રોજેક્ટ વેચાવામાં આવે છે. સિરિયસલી હોતા નહીં. સર એ અમારે એટલી મોટી એકેડેમિક વ્યક્તિ તરીકેની વેદના છે કે છોકરાઓના પેરેન્ટ્સને પણ 10,000 રૂપિયા આપી દેવામાં બહુ જ મજા આવે છે અને છોકરો ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જે પ્રોજેક્ટ લઈ આવે છે અને જીટીઓ એવોર્ડ મળી રહે છે. આની સાહેબ જે નાનકડું સેમ્પલ એલડીમાં કર્યું આ લોકોએ અને 40 રાત્રે 8 વાગ્યા સુધી સાહેબ છોકરાઓ બેસી રહે, જાય નહીં, રજા છૂટી હોય તો દિવસોમાં ચાલુ કરી દે. તો સર એવા છોકરાઓને આપણે પ્રોજેક્ટમાં મેં સર એક સામે એક આઈડિયા કર્યો. અત્યારે ફ્લિપકાર્ટ એમેઝોન સબ થાય છે ને, મેં સર હું રજીસ્ટર થયો એક સેલર તરીકે. પછી મારા પર ફોન આવવા મળે કે તમે શું વેચવા માંગો છો? મેં આઈ વોન્ટ ટુ સેલ માય આઈડિયા. કે ફ્લિપકાર્ટ અને એમેઝોન સેલ માય આઈડિયા. તો આટલા 50,000 છોકરાઓ છે, દે આર ડુઇંગ પ્રોજેક્ટ્સ. આઈ વોન્ટ ટુ મેન્ટર ધેમ. અને હું તમને આઈડિયા આપું કે જે ડાયરેક્ટલી કોકના ઉપયોગમાં આવતું હોય. અત્યારે સાહેબ બધા જ પ્રોજેક્ટ બને છે કોમ્પ્યુટર, આઈટી, ઇલેક્ટ્રોનિક્સના, ઇવન મિકેનિકલ, સિવિલમાં. જે લોકો પ્રોજેક્ટ બનાવીને સ્પાઇરલ માઇન્ડ બનાવીને આપી દે છે, ફેકલ્ટી અને રેગ્યુલેટ કરીને ગ્રેડ આપી દે છે, એનો કોઈ જ ઉપયોગમાં આવતો નથી. એટલે સ્કેનલ જો આપણે આનો લિંક કરીએ ને એટલા માટે મનીષભાઈ બહુ સરસ પ્રોજેક્ટ ટુ પ્રોડક્ટ છે. અને સાહેબ સાથે આપણે પહેલી મીટિંગ જ્યારે ઉપર કરી હતી સાહેબ, ત્યારે બી આ જ વાત કરી પ્રોજેક્ટ ટુ પ્રોડક્ટ. અને સાહેબ એમાં છે કે લાસ્ટ ફાઇનલ સેમિસ્ટરમાં જે આવે છે ને એના કારણે શું છોકરાઓ રિસ્ક લેવાની કેપેસિટી ઓછી થઈ જાય છે, પ્રેશર બહુ હોય છે. એટલે શરૂઆતના તબક્કામાં ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરીએ આપણે થોડું. મને આઈડિયા આવે છે આ ઇટ ઇઝ એઝ અ એકેડેમિક પર્સન ઇઝ અ વન્ડરફુલ આઈડિયા. આપણે ડિશ આપીએ છીએ, આપણે કરીએ છીએ શું સાહેબ કે છોકરાને ઇન્ડસ્ટ્રી પ્રોજેક્ટ લેવા માટે મ્યુનિસિપલ કાગળ લખીને સહી કરીને આપી દે છે. છોકરો ઇન્ડસ્ટ્રીમાંથી પોતાની उसमें बिफोर आई कम टू दिलावरी आई जस्ट वांट उसमें सर एक काम कर सकते हैं. अगर जैसे कि बिरल साहब ने मनीष भाई ने एक अच्छी काम किया, जैसे कि यहाँ पे कुछ 200 गांव थे बिरल साहब, 200 गांव की बच्चों को वहाँ पे बच्चों को भेजा,
4 दिन के लिए वहाँ पे जो भी सोशियो टेक्निकल चैलेंजेस है, चूल्हा से लेकर इलेक्ट्रिसिटी से लेकर फर्स्ट ईयर में खाली फर्स्ट ईयर एक काम कर सकते हैं सर कि अलग अलग उस दिन चीफ मिनिस्टर मैडम ने एक बात कही, बड़े बताया, और उसके बाद मैडम से जब बात हुई सीएम मैडम ने ये कहा हर डिपार्टमेंट में, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लेकर हर डिपार्टमेंट को ग्राउंड रियलिटी पता है कि कहाँ पे क्या टेक्निकल इंटरवेंशन चाहिए, इरिगेशन से लेकर सब कुछ। उनकी अगर हम एक कंपाइलेशन बनाते हैं कि ये ग्रांड चैलेंजेस है और उसको फ्रैगमेंट करके यूनिवर्सिटीज को देते हैं और उससे जो सोल्यूशन निकलेगा उससे एंटरप्राइज करेंगे तो पब्लिक रिसोर्सेज पब्लिक फायदे के लिए आ जाएगा सर। और ये चीज को हम ये पूरा ये जो पाइपलाइन लेते हैं उससे जगह पे और यूनिवर्सिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए। वही बात सही है कि हम लोग ऐसा कुछ स्ट्रिंजेंट सिस्टम बनाए ताकि जो जेन्युइन काम हो रही है उसको एक मोटिवेशन मिले एंड देन कैन गेट दिलावर यू हैव अ पॉइंट देयर આપણે બધા મજા છે એના બેને કરતા Hi everyone, this is Nilambari from Bhopal, and I have 3 major points to cover, and I'm going to say it all together because we haven't had a chance to speak yet. The first thing is I really appreciate each and everyone sitting over here and the effort and the amount of energy that everyone has put in so that all of us can actually sit together in Gujarat and discuss entrepreneurship. So I think we need to give ourselves a big round of applause for that. The second thing which I need to focus upon, and I think the room is the evidence of that, there are hardly any women here. અહીંયા છોકરીઓ બહુ જ ઓછી છે. And I'm all for equality, because of which I think I need to voice this, that at all levels આપણે ચાહીએ છીએ કે છોકરાઓ અને છોકરીઓ સાથે એડવાન્સ થાય. And જે છોકરીઓને challenges મળે છે ગુજરાતમાં એ બહુ જ અલગ છે from what the guys have been facing till now. Not to mention that છોકરીઓનું educationનું environment, એ લોકોના statistics, એ લોકોનું amount of the liberation that they have, all of these are important points that we need to factor in, and therefore I think it is very important that at that level we have some sort of representation and some sort of special focus on women entrepreneurship. We need to focus on women entrepreneurship because really the challenges that the girls face are very different. The entrepreneurs which are girls in Gujarat are very less, and this is not just for Gujarat, this is India. So we need to focus on the women for sure. And I think my friend also has a point here. Thank you. Just to add you, the recent study which yes and Professor BD they found out it was interesting research आया सर. उन्होंने टेस्ट किया सैंपल स्पेस में, उन्होंने एक्सपेरिमेंट में ये पाया अगर इक्वल एक्सपोजर इक्वल एज में कॉलेज में बच्चे और बच्चियों को दिया जाए चांसेस ऑफ ए गर्ल बिकमिंग एंटरप्रेन्योर इज मोर. This is that a lot of So let me share with you. So what we found is that a lot more girls were ready to do it while they were in college, and a lot less, and while guys were more ready to do it after 2 years of experience. And then we found that lot more girls wanted to do it while they were in college because they wouldn't have any pressures of marriage or other kind of social obligations. तो एटलीस्ट एक बात कर सकते हैं कि उस दिन सीएम मैडम ने भी कहा था कि टारगेट करें कि 20% 30% सपोर्ट सिस्टम है. इनफैक्ट सब लैटिन अमेरिकन कंट्री ने तो डिसीजन लिया है कि जिस कंपनी का मेन को फाउंडर एक गर्ल है उसको अलग से वो लोग सपोर्ट सिस्टम दे रहे हैं. बट एनीवे हम लोग आई थिंक कुलदीप वाले पॉइंट બીજા બેને પણ આજો જો કરો यस ઓકે Yeah. હવે પછી તમારી વાત એમને બેના Sir, I want to speak for non-technology students as such. So the point being, so हम लोग बहुत सारा डिस्कस करते हैं. Maybe last time जब सर आए थे, so they had assured us कि गुजरात यूनिवर्सिटी के लिए भी they are going to have an infrastructure and stuff. So at least problems are there. Rahul would have shared, like he would have experienced a lot because he's been working there. Problems आ रहे हैं, but लोगों को पता नहीं problems कहाँ आ रहे हैं. Yeah, so अगर नहीं हो रहा है तो भी if somebody could communicate to us कि क्यों नहीं हो रहा है, कहाँ problem हो रहा है. And if you want our support, like if you want us to do something, वहाँ पे झाड़ू लगाना होगा. I would like to respond. So sir, Shruti third year student है और कुछ startup में start किया है. मैंने 5 साल पहले खुद का एक startup start किया था similar lines पर. अभी हमारा बहुत अच्छा चल गया है startup. But सबसे पहले जो एक startup टीम को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, वो हम कहाँ बैठकर काम करें. मेरा co-founder साथ में है और मेरे दूसरे भी co-founder साथ में है इधर. हम लोग पहले हमारे 3 साल हम लोग कैफेटेरियाज में जाकर मीटिंग करते थे और हमने वहां पर बैठ के हम मीटिंग्स करते थे और हमने 3 साल हमने प्रिंट एडिशन चलाए कैफेटेरिया में बैठ के. गुजरात में एक ही सेंटर है
GTU ACPC पे जो कोई भी स्टार्टअप टीम को एंट्री देता है विदाउट एनी स्ट्रिंग्स, विदाउट एनी स्पेसिफिक वेरी स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट, वहाँ पे बच्चे बैठकर अपना काम कर सकते हैं, अपनी टीम को ला सकते हैं, अपनी मीटिंग कर सकते हैं, इंटरनेट कनेक्शन है, वाईफाई है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर देना है दैट इज नथिंग, इट्स रेयरली एनीथिंग इन कंटेक्स्ट ऑफ द गवर्नमेंट, बट उससे जो फायदा मिल रहा है बच्चों को दैट्स इमेंस। सो वहाँ पे इतने सारे, मेरे हिसाब से यहाँ से कितने सारे स्टार्टअप्स GTU में ACPC से काम करते हुए फिर आगे गए होंगे। मेरा भी स्टार्टअप GTU से ही काम कर रहा है। GTU की आप बात बता रहे हैं, मेरे एसजे के पास एक मीटिंग में GTU में गया था नीचे सेकंड, तो 2 बजे मतलब अच्छी फैसिलिटी स्पेस तो है, लेकिन मैंने देखा कि 2 बजे सभी बच्चे ऐसे वो उसके ऊपर रख के लंच खड़े जगह की मैंने पूछा नीचे मेरे से बोले सर ये लंच करने के लिए इट इज अ रूटीन प्रैक्टिस, एब्सोल्युटली, बिल्कुल जगह, आई एम देयर एवरी डे, आई नो इट। तो खड़े खड़े लंच करते हैं। देखिए we can ask the universities, yes, to create such type of, yes, बिल्कुल बिल्कुल, और उसको डिसिप्लिन आपके लिए कोई अच्छी जगह बैठने के लिए नहीं काम करने के लिए ये करने के लिए સર સ્કોપ પ્રોગ્રામમાં ઓલરેડી રૂમ કન્વર્ટ થયેલા છે, જે ઇંગ્લિશનો જે પ્રોગ્રામ એનો સેટમાંથી એક રૂમ છે, KCG पे है, लेकिन साहब ये बोल रहे हैं कि अगर साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी को करना है वो सॉल्व करना है और मैं काम पड़ेगा व्यवस्था से हाँ, we can do it. सर ये सिर्फ अहमदाबाद में है, ये सूरत, बड़ौदा, राजकोट, हर जगह। अभी आप सिर्फ अहमदाबाद को देख रहे हैं, बट गुजरात में इतने लोग हैं जिनको अभी तक हमने टच नहीं। मैं तो गुजरात देख रहा हूँ। बिल्कुल, ग्रेट। Sir, I would like yes, to कुलदीप भाई, being a journalist and a communication expert અને કુંદભાઈ જોડે મારી અમુક વાર વાત થયેલી છે સ્ટાર્ટઅપ ઉપર અને સ્ટોરી હું કરતો હતો. It is very easy to criticize government, I understand, because I have been there on that side also and this side also now. Not very easy, very easy. Actually, thank you for adding that. પણ સર અમે એ પણ કેટલા ચેલેન્જીસ જે આપણા બ્યુરોક્રેટ્સ છે એમને ફેસ કરવા પડે છે, કોઈ વસ્તુ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરતાં પહેલાં એ લોકોએ ઘણું બધું સ્ટડી કરવું પડે છે, અને the fact that all the ministers are brave enough to come in the public and say કે અમે આ ઓકે અમારામાં ભૂલ છે અને એમાં સુધારવા માટે અમે તૈયાર છીએ. સૌરભભાઈએ મીટિંગ કરી હતી અને પછી એમણે કીધું કે અમે સોશિયલ એસ્પેક્ટને ભૂલી ગયા છીએ, મેન્યુફેક્ચરિંગ છે અને સોશિયલ એન્ટરપ્રિન્યોરશિપને અમે બહુ ધ્યાન નથી આપ્યું, તો અમે ઇન્ક્લુડ કરીશું સ્ટાર્ટઅપ પોલિસીમાં. એટલે that's one thing, but sir, you know, at the same time I've also found, because I've been on the both sides, કે ઘણા બધા બ્યુરોક્રેટ્સ જે છે એ એટલા ઓપન જ નથી ટુ કમ્યુનિકેટ ટુ મીડિયા. તો શું થતું હોય છે કે યાર મીડિયાનો સપોર્ટ જો તમને મળે તો તમારું જે બળ છે એ બમણું થઈ જતું હોય છે. ઇટ્સ ઇઝી ટુ રીચ ફાસ્ટર ટુ a larger number of people. So for that, we can actually improve our outreach. positive outreach. પોઝિટિવ એક જ નાની વસ્તુ છે, તમારે જવાબ ના આપો તો કોઈ પણ વાંધો નહીં, તમે એ જર્નલિસ્ટને એન્ટરટેન કરો, તમે એને ખાલી કહો કે ભાઈ આનો જવાબ મારી પાસે અત્યારે નથી, હું તમને 10 દિવસ પછી, 15 દિવસ પછી, મહિના પછી જવાબ આપીશ, કારણ કે આપણા માટે આટલો ટાઈમ જોઈશે. And that is more than enough. Instead of saying I don't want to talk to you, so that gives a wrong impression to a journalist and a media house કે આમાં કંઈક કાળું છે, જેની ખરેખર એવી કોઈ સ્થિતિ હોતી જ નથી. But because of running away from a responsibility, they are not willing to communicate. एक पॉजिटिव चीज जो हुई है, आई थिंक मैंने कल ही एक कंपाइलेशन बनाया था कि पिछले 4 साल में लोकल मीडिया में और इंग्लिश मीडिया में 600 से ज्यादा इनोवेशन और 300 से ज्यादा स्टार्टअप्स की कहानी के बारे में लिखी गई है आपके फेक कोर्स. ये एक बहुत बड़ा मीडिया की भी योगदान है. एक और आज ही इंडियन एक्सप्रेस ने एक आर्टिकल निकाला है. अविनाश राय ने लिखा है कि लंबा सा. But apart from that, જે આવી રહ્યું છે એના કરતાં ઘણું વધારે આવી શકે છે. તમે જોયું હેલ્થનું કમ્યુનિકેશન જે છે એ હવે થોડુંક ઇમ્પ્રૂવ થયું છે છેલ્લા 1 decade. લોટ ઓફ હેલ્થ ફિટનેસ આર્ટિકલ્સ આર કમિંગ અપ. આઈ થિંક સ્ટાર્ટઅપ ઇઝ ઇક્વલી ઇમ્પોર્ટન્ટ, કારણ કે અહીંયા આપણે જોબ ક્રિએશનની વાત કરી રહ્યા છીએ. એક જે માઇન્ડસેટ હમણાં વાત કરી રહી હતી કે તમે સ્ટડીઝ પૂરું કરીને નીકળો અને તરત જોબ લઈ લો, પણ તમે ઓવરનાઇટ એ ચેન્જ ના કરી શકો. આવતા 5 વર્ષ સુધી પણ એ તમે માઇન્ડસેટ નહીં ચેન્જ કરી શકો, બીકોઝ ઇટ ટેક્સ ટાઈમ. કારણ કે લોકોને સોશિયલ સિક્યોરિટી જોઈએ છે, ઘર ચલાવવું હોય છે. ઇટ ઇઝ વેરી ઇઝી ટુ સે કે તમે બિઝનેસ કરી લો, પણ એ સસ્ટેન કરવું, ઘરમાં રેસ્પોન્સિબિલિટી લેવી, લોકો લોન લઈને ભણતા હોય છે, એ પૂરું કરવામાં જ લોકોનું જીવન નીકળી જતું હોય છે. સો ઇટ ઇઝ વેરી ઇઝી ટુ જસ્ટ સે કે બસ તમે એન્ટરપ્રિન્યોરશિપ કરો અને અમે તમને સપોર્ટ કરીશું. એ ટ્રુ સપોર્ટ પૂરું નથી હોતું. દેટ્સ વન પોઈન્ટ. વેરી ક્વિકલી આઈ વિલ ટુ, બીકોઝ લોટ ઓફ પીપલ વોન્ટ ટુ ટોક અબાઉટ ઇટ. સર, રૂરલ આઉટરીચ આપણે વધારે કારણ કે રૂરલ ઇનોવેશન અને સ્ટાર્ટઅપ ઘણા બધા એવા છે જે ઘણું બધું કરવા માંગે છે. વી આર ફોર્ચ્યુનેટ દેટ વી આર ઇન સિટીઝ, વી આર ઇન ટાઉન્સ.
still we have that approach that to come and talk to you. But ગામડાના જે છોકરાઓ છે જેમાં ઘણી બધી પ્રતિભા છે એમને પણ આપણે એન્ટરટેન કરવાની ખૂબ જ જરૂરત છે. And that can only happen when our outreach is strong, when our bureaucrats are sensible enough, they are, but even more in terms of startup. And they go and talk to the rural media there, because the rural media have a very different mindset. એમને સ્ટાર્ટઅપમાં કોઈ રસ જ નથી. એ તમારે જિજ્ઞાસા જગાડવી પડે. આપણે બાયસેકની વાત કરીએ, આપણી પાસે ગુજરાતી ડીડી ગુજરાતી ગિરનાર ચેનલ પણ છે. કેમ નહીં, આપ ખુદ જેમ મારા એક સ્ટાર્ટઅપવાળા મિત્રએ વાત કરી કે ભાઈ સાહેબનો ફોટો જોયો એટલે ફેમિલી પણ સપોર્ટ કરે છે, કોલેજમાંથી પણ ફોન આવ્યો. તો ગવર્મેન્ટ એક ફેસ બને, ત્યાં જઈને વાત કરે, ટીવી ઉપર નાના નાના ઇન્ટરવ્યૂઝ કરે, 10 મિનિટના 5 મિનિટના એક સિરીઝ કરે, સ્ટાર્ટઅપ સિરીઝ કરે, જ્યાં એમની એ મનની વાત જે છે એ પૂરી પાડે કે ભાઈ ગવર્મેન્ટ આટલું કરવા માંગે છે, આટલું અમે અલોટ કરી રહ્યા છે, આટલું અમે કરી શકીએ છીએ, આટલું ઇન્ડસ્ટ્રીને ઇન્વોલ્વ કરવાની જરૂર છે. વેન આઈ સે ઇન્ડસ્ટ્રી સર, CSR એન્ડ સ્ટાર્ટઅપ, આઈ કાન્ટ ઇન્ટિગ્રેટ ધીસ થિંગ્સ. CSR માટે પણ મોદી સાહેબ ઘણું બધું કરી રહ્યા છે, સ્ટાર્ટઅપ માટે પણ કરી રહ્યા છે, આપ લોકો પણ ઘણા બધા કામ પર વી આર પ્લાનિંગ ઓન ઇટ. So sir, that can be included. Sir, એક very small suggestion. બધાએ કીધું કે ભાઈ મહોત્સવ કરો, સ્ટાર્ટઅપ મહોત્સવ કરો. હું કહું છું કે એક જે નંબર આપણે લાવવાની જરૂર છે ને એના માટે આપણે સ્ટાર્ટઅપ રન કરીએ, ડ્રીમ રન કરીએ, જેના અંદર જેટલા પણ સ્ટાર્ટઅપ છે એ આવીને જોડાય અને રજિસ્ટર કરે એ શું કરી રહ્યા છે, ખાલી એટલી બેસિક ડિટેલ આપણને જોઈએ છે. જે લોકો સ્ટાર્ટઅપને સપોર્ટ કરવા માંગે છે, એમને ખબર નથી શું કરવું, કઈ રીતે કરવું, એ આવીને કરે. જે CSRના પર્વ્યુમાં નથી આવતા, બટ એમને એવી ઈચ્છા છે કે ભાઈ મારે 50,000 રૂપિયા આપવા છે કે 10,000 રૂપિયા આપવા છે જે આ ફંડમાં કામ આવી શકે છે, એ ત્યાં આવીને રજિસ્ટર કરે. એક ડેટાબેઝ ક્રિએટ કરો આપ, જેનાથી આપણા પાસે એક નંબર આવશે કે ભાઈ કેટલા સ્ટાર્ટઅપ કરવા માંગે છે, કેટલા સ્ટાર્ટઅપને સપોર્ટ કરવા માંગે છે. અને આ આપણે સિટી લેવલ, સ્ટેટ લેવલ, ગામડાઓમાં, ટાઉન્સમાં આપણે એ પાર્ટ્સમાં કરી શકીએ છીએ. સ્ટાર્ટઅપ ડેની વાત કરી ત્યારે સાયમલ્ટેનિયસલી આપણે ડિફરન્ટ સ્ટેક હોલ્ડર્સને ઇન્વોલ્વ કરી શકીએ. So they will be motivated to get joining hands with government. Thank you. So one thing more just morning. आपके मिनिस्ट्री में अगर एक स्टार्टअप सेल या स्टार्टअप डिपार्टमेंट हो सकता है, सिंगल विंडो जहाँ यूनिवर्सिटीज मीडिया अगर कोई फंड देना चाहता है, वो हर कोई वो एक ऑफिसर को मिलने का और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट startup.gov.in, तो मतलब सब कुछ सेग्रीगेट जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिकॉज आज के तरीके में मुझे पता नहीं कि गवर्नमेंट ने कहाँ मुझे अप्रोच करना है, पर अगर मुझे पता है कि एक डिपार्टमेंट ऑफ स्टार्टअप है जहाँ मुझे उसको अप्रोच करना है, एंड द IAS ऑफिसर whoever is there, he should be sensitized to स्टार्टअप. उनको बताना होगा कि आपका 24 कलाक का जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, बट 24 कलाक का, बिकॉज स्टार्टअप वाले ना बहुत परेशान करते हैं. हम इंडिया में हमको पता है रात के 12 बजे SMS छोड़ते हैं कि भाई हाथ करना है. सर मेरा कंसर्न we have to be ready for the answer. सर मीडिया और बीच में बोलना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का ऑलरेडी 2 मैगजीन्स काफी पॉपुलर मैगजीन, एक तो है द गुजरात इंडिया. सो इवन इफ यू स्टार्ट फीचरिंग वन स्टार्टअप फ्रॉम गुजरात and start pushing, ना, because वो काफी उसका रीच आउट बढ़ेगा. मतलब ऐसे स्टार्टअप आपका गुजराती भी और इंग्लिश भी है, दोनों है, जो कि बहुत जगह जाता है, अब्रॉड में भी जाता है, इंडिया में बहुत सारे एम्बेसीज में जाते हैं, पब्लिकेशन जाता है. तो अगर हम उसमें इंक्लूड करें तो कि हमारा माध्यमिक शिक्षण परीक्षण वही हर महीने करता है, जैसे 15,000 स्कूल्स में जाता है वैसे. तो आप मुझे लिख के दीजिए कंटेंट्स पूरा, तो वी कैन इनकॉर्पोरेट. ओके, स्कूल्स लेवल पे सेंसिटाइजेशन चालू करें, तो कॉलेज लेवल तक तो जो है एक पूरा पाइपलाइन जो है सब स्कूल से चालू होगा, पहले आपको स्टार्टअप तक चलेगा. कर सकता हूं सर ये बढ़िया है. दिस विल बी गुड. विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू इन दैट. राइट अप चाहिए. हां सर. There are different platforms like Kushpenyor, and other आप उनको इन्फॉर्मेशन दीजिए, वो भी आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो आउटरीच में ले जाएं. तो इट इजियर टू बिल्ड अ ट्रस्ट, बिकॉज गवर्नमेंट अपनी बात करे और बाकी लोग भी आपकी बात करें, उसमें बहुत फर्क पड़ता है. तो गवर्नमेंट भी अपनी बात करते जाए और बाकी लोग जो स्टेक होल्डर्स हैं वो भी आपके बारे में बात करें. तो इट विल रियली हेल्प यू टू आउटरीच फास्टर. like Kushpenyor, Youth Connect. सर की जो YouTube चैनल और Facebook चैनल है ना, you can keep on sharing good stories. उस दिन जो मैडम आपके बच्चों को देखे और कुछ चीजें उन्होंने शेयर किया तो 10,000 टाइम रीट्वीट हुई, और फिर वो जो एक मैसेज जाता है आपकी पॉजिटिव स्टोरी, पॉजिटिव स्टोरी आज मैंने इस तरह how we help them out, हम लोग मुझे चाहिए
કે શહેરમાં પ્રતિભાવ છે, ગામડામાં પણ છે, અને એ બહાર ક્યારે આવે કદાચ માર્ક કર્યું હોય, પણ જ્યોતિર્ગ્રામ યોજના આવી. તમે જો નરેન્દ્રભાઈની ફોરસાઇટ કેટલી હોય. એ પહેલાનો સર્વે કર્યો છે તારણપરાએ છે. तो ज्योतिर्ग्राम योजना આવી. ज्योतिर्ग्राम योजना 24 hours electricity in the rural area also. इसके पहले बोर्ड के एग्जामिनेशन में 10 आते थे, 10 शहर के आते. ज्योतिर्ग्राम के बाद 2003 में हमने शुरू की, तो 5, 7, 8 से तो मैं देख रहा हूँ कि वो 10 में 3-4 रूरल के लिए. It is only because of rural electricity 24 hours. तो आपने जो बताया, तो ये या शहर में ही है, ऐसा नहीं है. आप सब वैसे तो गांव के ही होंगे, सब वैसे तो गांव के होंगे. फिर शहर में अगर दादा बसे, पिताजी बसे और हम शहर के कैडर लगे, मगर ओरिजिनल भी ऑल आर फ्रॉम. यस सर, इंसेंटिवाइज करना बहुत जरूरी होता है एनी लेवल, whether वो स्टूडेंट लेवल पे हो या पोस्ट स्टूडेंट लेवल पे हो. अब इंसेंटिवाइज नॉट ओनली फॉर द स्टूडेंट्स. चलो हमारे बजट फोन से बात है. उसके अलावा क्या होता है कि अगर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को भी इंसेंटिवाइज करें कि सपोज दे प्रमोट द स्टार्टअप, सो दे टेक अ पार्ट ऑफ इक्विटी इन दैट पर्टिकुलर स्टार्टअप विद अ रोड मैप ऑफ डाइल्यूशन ऑफ इक्विटी. सो आफ्टर एवरी ईयर और 2 साल 3 साल के बाद में जब वो डाइल्यूट होगी इक्विटी, तो उससे क्या यूनिवर्सिटी विल अर्न कमर्शियल वैल्यू आउट ऑफ इट. And then universities can be ranked, colleges can be ranked, and all those things out of commercialization of the startup. So, I think I like to add. I like to add that we can have we have carbon credits. We can also have startup credits, to the college. GST का facilities है. See, I have one point. I am associated with many colleges because I keep on going there. I have seen that what we are talking about startup culture, but startup culture per se would be there only through word of mouth. Now startups, any enthusiastic student will start a startup, and I don't think starting a startup is something which we should focus on. Sustaining a startup is more important. For the first 3-4 years they are very tough period for any startup. तो अगर आप ये बोलते हैं कि स्टार्टअप ये यूनिवर्सिटी इस कॉलेज ने 15 स्टार्टअप किए, तो दैट इज नॉट द पॉइंट. Yeah, and how he has sustained. So maybe we should have a hand-holding pattern from the university startup cell. The placement cell works once the student is graduate. Startup cell should work when student is inducted, and he should handhold the student for 2 to 3 years, mentor him, during that time, and he should tell him to start a startup on the day one. I mean, that process to start. और इसमें अगर कॉलेज की अगर इंग्लिश पार्टनर है तो वो 3 साल के बाद में डाइल्यूट करेगा. तो adding to 60 साल से we had a job culture. तो उसी तरीके से we should embed in the culture of students and the vice chancellor startup culture. तो basically इसमें important चीज क्या है, जो vice chancellors हैं उनको startup education देना बहुत important है. They should understand what a startup is. अगर कोई बच्चा स्टार्टअप कर रहा है तो कोई गलत काम नहीं कर रहा, क्योंकि अभी भी माइंडसेट आफ्टर द स्टार्टअप इंडिया आल्सो इज दिस ओनली कि स्टार्टअप कर रहा है जिसको जॉब नहीं मिली शायद वो इसलिए स्टार्टअप कर रहा है. इनको जानकारी नहीं चाहिए. जानकारी स्टार्टअप कल्चर क्रिएट करना किसी को सिखाना नहीं है, जानकारी देना. सो एक जो टॉप डाउन बॉटम अप्रोच होके वीसी से लेके सब टीचर्स तक पॉइंट करिए. સર વાત ચાલી રહી છે સ્ટાર્ટઅપ માં, એમાં સ્પેસિફિકલી સ્ટુડન્ટ સ્ટાર્ટઅપ ની એ કદાચ હું આની અંદર બોલી શકીશ, કારણ કે મેં મારા ફર્સ્ટ યરની અંદર સ્ટાર્ટ કરી હતી કંપની, અને અત્યારે સારી વેલ્યુએશન પર કરી રહી છે કામ. હવે સર ક્ષેત્રમાં કામ કરો એ તો કહો. સર તમે મને ચિંતન શિબિરમાં કદાચ સાંભળેલો છે, હું ચિંતન શિબિરમાં તમે મને ઇન્વાઇટ કર્યો. એટલે સર અમે લોકો બેઝિકલી સોલાર અને રિન્યુએબલ્સમાં કામ કરીએ છીએ, અને અમારી પાસે ઘણી પેટન્ટેડ ટેકનોલોજીસ પણ છે, અને રિસન્ટલી અમે લોકો MIT ક્લાઇમેટ કોલેબ અવોર્ડ જીત્યા હતા, અને COP21 જે પેરિસમાં થઈ ગયું ત્યાં આગળ મોસ્ટ ઇમર્જિંગ સ્ટાર્ટઅપનો પણ અમને એવોર્ડ મળ્યો. તો સર હવે વાત એ હતી કે સ્ટુડન્ટ સ્ટાર્ટઅપ, અને એમાં પણ જે લોકો કોલેજમાં કરે છે ને એમાં પણ સ્પેસિફિકલી જે લોકો હાર્ડવેરમાં કામ કરે છે. હવે સર હાર્ડવેરની અંદર કામ કરો એટલે સૌથી પહેલી વસ્તુ તો કદાચ જો સોફ્ટવેર સ્ટાર્ટઅપ હોય તો એ લોકો તો કોમ્પ્યુટરમાં એક નાઇટમાં પ્રોગ્રામિંગ કરીને બતાવી શકે, પણ હાર્ડવેર માટે તો પહેલા પ્રૂફ ઓફ કન્સેપ્ટ લઈને જોવો પડે, એ કામ કરે ના કરે, એના પછી બીજા 2, 3, 4, 5 મોડેલ બને ત્યારે એક સ્ટાર્ટઅપ એ લેવલ ઉપર પહોંચે
કે જ્યાં આગળ જઈને કે ઇન્ક્યુબેશન સેન્ટરમાં બેસીને કામ કરી શકે. હવે પ્રોબ્લેમ એ થાય છે સર કે જે નાના લોકો જે સ્ટાર્ટઅપ સ્ટાર્ટ કરે છે એ લોકો ત્યાં સુધી પહોંચી જ નથી શકતા, પહેલો પ્રોટોટાઇપ સુધી જ નથી પહોંચી શકતા. હવે સર સપોઝ કે એક નાના લેથ ઉપર એક નાનું ટર્નિંગ કરાવવું છે અને ત્યાં આગળ કોઈ જીઆઈડીસી માં જઈને પૂછો તો પેલો 2000 રૂપિયા પણ કે 5000 રૂપિયા મળે. હવે સર મારો પોઈન્ટ એ છે કે જે લેથ માટે જે છોકરો જીઆઈડીસી માં જઈને ફરે છે, આપણી ગુજરાતની દરેક કોલેજમાં હજારો લેથ પડાય જેવા જે બિલકુલ યુઝમાં નથી આવતા. ક્યારેક જો એની અંદર એક કામ માટે લેવું હોય તો પહેલા તો બધાની પરમિશન લેવી પડતી હોય છે, પ્રિન્સિપલ પરમિશન ને બધા લોકોની, અને એની અંદર પહેલા જસ્ટિફાઈ કરવું પડે કે એ શું કરશે એની સાથે. હવે સર આ તો ખાલી એક લેથની વાત થઈ, આવા બહુ જ બધા એવી વસ્તુ છે, મતલબ કે આપણી પાસે મિકેનિકલના વર્કશોપ છે, આપણી પાસે સિવિલના વર્કશોપ છે, મતલબ કે જે આઈઆઈટી ગાંધીનગરની અંદર જે અમુક કમ્પોનન્ટ છે, સ્પેસિફિકલી જે નિરમામાં એક કમ્પોનન્ટ છે સર, 2.5 કરોડનું ખાલી એક થર્મલ ટેસ્ટિંગ છે, જે આખા ઇન્ડિયામાં એક જ યુનિવર્સિટી પાસે છે. અને આનું ટેસ્ટિંગ કરવા માટે સર જો મતલબ કે હું ખાલી એક એક્ઝામ્પલ આપી રહ્યો છું, આવા ઘણા બધા ઇક્વિપમેન્ટ્સ ઓલરેડી આપણી પાસે વસાયેલા છે. So you said that startups should be accessible. હવે જો આ વસ્તુને એજ્યુકેશન મિનિસ્ટ્રી પરથી જો કહેવામાં આવે કે ખાલી 1 કે 2 કલાક માટે તમે સ્ટુડન્ટ સ્ટાર્ટઅપને આને યુઝ કરવા માટે આપો તો સર કેટલાય એવા આઈડિયા છે કે જે પ્રોટોટાઇપમાં કન્વર્ટ થઈ જશે, અને એક વખત પ્રોટોટાઇપમાં કન્વર્ટ થઈ ગયા પછી તો સર લોકો રૂપિયા સામે જ ચાલીને આપવા માટે આવે છે, કારણ કે બધાને રૂપિયા કમાવા No, I'm going to extend this point only. You've been working on patented technologies. So, you know, if we're trying to help out the hardware startup, and if they're ones who are actually pushing forward the technology, who are pushing forward the innovation, they should definitely be helped. There could be a lot of hardware startups. But if somebody is working out on patented technologies, then there should be special consideration for them, because it's very difficult to work at. Knowledge create कर रहे हैं. Yes, because that's what's going to take our technology base forward. So there should be something extraordinary when somebody is working on innovation, patented technologies, and there should be something to handhold them, because they're working in cutting edge. So it won't be easy for them in the market. और उसमें एक चीज साहब, हर जीआईटीसी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वगैरह बनी हुई है, सर हम अगर उनसे कोऑर्डिनेट कर लें, वो स्टार्टअप्स के लिए एक फॉर्मेलिटी बना दें, हम एक प्रोसेस बना दें जोन वाइज जो भी है, और वो एक्सेसिबिलिटी को क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तो है सर, जीआईडीसी में जो है उससे तो ज्यादा कई गुना ज्यादा अपनी इश्यूज में दिस इज अ वेरी रिलेवेंट पॉइंट टुडे स्टूडेंट स्टार्टअप के जो प्रोटोटाइप बाकी Sir, including to this mechanical and all other fields, we are also having so many other fields, not only IT, but there are some legal process and there are so many other process which we have to deal with the government, and which is very difficult for startup like us. Like as I am dealing with healthcare, so having a lots of legal and quality assurance and all that stuff. So maybe we can have a hand-holding for startup that it can be more easy to contact some person and get it done in a fast-track manner or something. तो एक काम कर सकते हैं उसमें, क्योंकि कैटेगरी से कैटेगराइज हो जाए तो सेक्टर स्पेसिफिक हम स्ट्रैटेजी बना लेंगे, मैन्युफैक्चरिंग को कैसे डील करना है, आईटी को कैसे डील करना है, आईटी बेस्ड को कैसे डील करना है. यस. So our startup is working into education, and we are doing startup education, and हम लोग केरला गवर्नमेंट का मोस्टली जितना भी startup education एक्टिविटीज है वो हमारे थ्रू हो रहा है. So basically जैसे हमने बोला कि specific workshops होने चाहिए. So what we do is we go to every colleges. So हम हर district in Kerala को target करते हैं. वहाँ पे at a center जैसे कि अहमदाबाद है तो हमें एनडी में. So we have a workshop which is hands on. हम awareness पे नहीं जा रहे. We are having hands on activities with the students come, they work, and वो हम एक camp mode में रखते हैं. So 2-3 days they work on a particular idea. And it is fun for them क्योंकि वो उनकी conventional education methods जो है blackboard teaching वहाँ से काफी हटके हैं. So they enjoy it, and जिस तरह से अभी यहाँ पे panel बैठा है, so these people like players like these come as mentors for 1-2 घंटा निकाल के इन workshops में आते हैं. They interact with the students, and what happens is rather than these people going on stage and speaking कि entrepreneurship इतना अच्छा है वैसा है, it makes more sense when these people go to the teams and help them with their themselves and share their experiences. So हमारा ये activity अभी is working with Kerala, and जैसे इन्होंने कहा कि एक point of contact होना चाहिए. So in Kerala we have a Kerala Startup Mission, so which is a point of contact. So anybody who wants to work with the students. अभी तो हम लोग to start with ऋषि साहब. इनके पॉइंट के अंदर आई वुड लाइक टू ऐड दिस केरला का सर. इन लोगों ने कितना अच्छा एग्जांपल सेट किया है कि सर दे हैव मेड द स्टूडेंट अटेंडेंस क्राइटेरिया रिड्यूस टू हाफ.
सर वो 45% तो स्टूडेंट्स की अटेंडेंस की लोगों ने જીટીયુ સ્ટાર્ટઅપ પોલિસીમાં છે અને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરેગો બધું છે ને પોલિસી કેરલા ગવર્નમેન્ટનો ઇટ ઇઝ અ વેરી બોલ્ડ સ્ટેપ સર કે એ લોકોએ આપણે કોલેજ પર અવોર્ડ લીધેલી છે સ્ટુડન્ટ્સ આવતા સ્ટુડન્ટ્સ આવવાનું નહીં કારણ સર ઘણા બધા છે લોકો પોતાની જાતે કરતા એ લોકો 45% હાજરી હોય તો એ લોકો ચલાઈ જાય उसमें ऐसा क्या साहब कि उसका प्रॉपर अरे यूज एनो के लिए जो प्राइस स्टूडेंट्स साथ थसे क्या वी कंपेयर देम टू सीट इन द क्लास फॉर 6 आवर्स कौन से टाइम में बच्चा फिर वो उसी टाइम उसको एग्जाम प्रिपरेशन करनी है उसको असाइनमेंट लिखना है तो स्टार्टअप कब करेगा मेरिट बेसिस पे सर उसमें जीटीयू में पॉलिसी से इम्प्लीमेंट करी है हाँ लेकिन उसमें कुलदीप साहब वही है कि सारे बोल रहे हैं कि इसको जेनरिक करके बाकी जगह में पहुंचना पड़ेगा थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी जो है इस कंसर्न वाज ओनली दैट कि टेकिंग इट टू मोर जेनरिक and getting it to done realistic. So one point that I will come to you because just before this सब अभी जैसे कि अभी वही पहली बार यहाँ पे इस पूरे हॉलिस्टिक कैंपस में पहली मीटिंग ऐसी हो रही है और गिलानी साहब से लेकर लोढ़िया साहब से लेकर कितने बार इस बारे में डिस्कस भी कर रहे हैं तो एक बार जैसे साहब पंकज साहब हैं वेरी एक्सेसिबल इवन इफ एसएनएस अगर लाइट नाइट वो जवाब देते हैं और चीज़ों को ले जाते हैं तो हम सोच रहे थे कि 5-6 लोगों की एक टीम बनाते हैं जो हर महीने में आपको अपडेट दे आके अलग अलग इकोसिस्टम से तो इस महीने में इतना अचीवमेंट किया सो दैट यू बिकम आवर एंड यू कम्युनिकेट टू पब्लिक मीडिया एंड अदर की इस महीने में हमने इतना कुछ किया तो जब मिनिस्टर साहब बोलेंगे या आप बोलेंगे तो वो एक आउटरीच बढ़ेगा तो एक कोशिश ये करें कि 5-6 लोग जो है एक महीने में एक अपडेट आपको दें आपकी मिनिस्टर साहब को और आपको कि भाई इतना काम हो गया है ये चीज हो गई है इतने स्पिन ऑफ निकला है और फिर आप उसको एक वर्ड ऑफ माउथ बना के इसको आगे ले लें तो उसमें मुझे लगता है कि थोड़ा सा अपडेट भी रहेगा हम लोग टाइमलाइन में सर आपने बोला एक आर्टिकल आया इंडियन एक्सप्रेस में सर वो मैंने ही सबमिट किया था आर्टिकल हमने रिसर्च अभी हम लोग कर रहे थे पिछले 1-2 साल से अबाउट दी स्टार्टअप्स नंबर ऑफ स्टार्टअप्स इन वेरियस स्टेट्स वहाँ पे जैसे अभी डिक्लेयर किया कि 4500 स्टार्टअप खाली लास्ट ईयर 2015 में स्टार्ट हुआ इंडिया में सो नंबर्स फ्रॉम गुजरात आर कंपैरेटिवली वेरी लेस एंड देयर आर सिटीज ओनली सिंगल सिटी फॉर एग्जांपल only 26% out of 100 26% are started from the Bangalore only nearly 17 from Hyderabad 26 or 20 nearly 20 from Delhi so those cities are performing very well on the number of startups now why the reason is that because they have their success stories of the previous startups and nearly and total environment for example if I tell you Flipkart alone has 20,000 employees and if you consider the attrition ratio of even 5% इतने एम्प्लॉय हर साल फ्लिपकार्ट को छोड़ रहे हैं और सिमिलर कंपनी में आसपास में कहीं ना कहीं सेट हो रहे हैं जो और कंपनी को ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं अब जब मैंने आई स्टार्टेड पिचिंग टू द इन्वेस्टर टू यू नो वेरियस इन्वेस्टर्स फ्रॉम दोज हु हैव इन्वेस्टेड इन फ्लिपकार्ट एंड द फेसबुक they came to I mean I pitched from Ahmedabad so they said how can you value your company at this much valuation if you are from Ahmedabad so there are no success stories so if we name a company any company which we are seeing at advertisement today or you name a company Ola Flipkart anything that we see advertisement they are not from Ahmedabad or Gujarat as of now but so this point is the point is you know most of the time these figures are figures which are available in data because we do not document हमारा सूती कल्चर अभी भी चालू है documentation तो अगर हम सब document करते हैं तो I am not saying I am not saying यहाँ पर नहीं है the thing is not they are not documented until now we didn't know the local investors are investing the article is saying that there are 4 to 5 recent investment अभी हुए हैं जहाँ पे अहमदाबाद के ही इन्वेस्टर ने अहमदाबाद में ही more than 6.5 crore in a single startup so I have 4 to 5 data but they were not documented yet so that's why we didn't know about it so success stories are created through yes please okay so I have a point that if we are able to get some startups from all the education institutes जो लास्ट 1-2 साल में ही शुरू हुए हैं और उनको एक प्रॉपर अवार्ड सेरेमनी के जो 2015 में ही स्टार्टअप शुरू हुए उन्होंने क्या अचीव किया है तो रियलिटी उनको लाया जाए और उनसे फिर अगर एक प्लेटफॉर्म पे जैसे उन्होंने बोला कि एक इवेंट की जाए तो उनको अवार्ड देके उनसे पूछा जाए उन्हें एग्जैक्टली क्या चाहिए वहीं पे मेंटर भी आए जो बोले हम ये मेंटरशिप दे सकते हैं हम आपको ये हेल्प दे सकते हैं हमारे वहाँ पे GCCI CII इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है उनमें देयर आर एंटरप्रेन्योर्स हु आर नॉट स्टार्टअप्स नेसेसरीली ठीक है तो वो अगर आके बोलेंगे ठीक है मैं तुम्हारे में इन्वेस्ट करता हूँ हमें इंटरनल इंक्लूसिव एक कल्चर बनाना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट का बैंगलोर में हैदराबाद में वही हुआ है जिन्होंने पहले स्टार्टअप किए वो अब नए स्टार्टअप्स में पैसे डालते हैं तो हमारे वहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के और दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं
उनको उकसाने के लिए सर अगर आप बुलाएंगे 100 स्टार्टअप को जिनको आप अवार्ड दे रहे हैं और वहां अगर ये ऑडियंस में बैठे हैं दे वुड लाइक टू इन्वेस्ट लाइक 50 लाख 1 crore very easily in these guys. So that is a way everything can move forward immediately. इसमें सबसे अच्छा काम कहाँ पर होता है? बैंगलोर में हो रहा है सेकंड स्टेज में, मतलब ग्रोथ आगे बढ़ गया है, ग्रोथ स्टेज में। अब अगर ग्राउंड में देखेंगे जो सबसे बड़ी एडवांटेज हमारे गुजरात के साथ ये है कि हमारी संख्याएं जो है ना अनमैचेबल इन टर्म्स ऑफ, और सेकंड थिंग इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ एक्सेसिबल रिसोर्सेज। सर डीएसटी के पास डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 100 इंक्यूबेटर सैंक्शन किया आज तक, उसमें से हाईएस्ट अहमदाबाद में 15 इंक्यूबेटर यहाँ पे। एमएसएमई डिपार्टमेंट ने टोटल 67 सैंक्शन किया दिल्ली से, उसमें से 7 गुजरात में। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास बहुत है, सिस्टम्स बहुत है, एक्सेलेंस बहुत है, लेकिन उनको इकट्ठा करके पाइपलाइन में डालने का कोई मशीन नहीं है। Even highest number of universities per population is in Gujarat. Yes sir. तो ये काम तो बहुत चालू किया है। हाँ, तो उसमें सब क्या हुआ, रेलवे ने विशाल साहब जो है उन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स से हैं, उन्होंने कहा कि रेलवे वांट टू सेट अप एन इंक्यूबेटर। रेलवे बोर्ड के अधिकारी आए साहब यहाँ पे, मिनिस्टर्स के एडवाइजर्स आए, उन्होंने कहा रेलवे को बहुत इनोवेशन चाहिए, हम 2 करोड़ लोग दिल्ली रहते हैं, हमको इतने सर्विसेज चाहिए। तो रेलवे ने कहा कि गुजरात में हम एक रेलवे इंक्यूबेटर बनाना चाहते हैं। फिर हमने सब डिफेंस की नेवी की वाइस एडमिरल को बुलाया कि नेवी में क्या इनोवेशन चाहिए। फिर एक पीएसयू से आया, उन्होंने कहा वी आर आल्सो ओपनिंग अप टू बिकम स्टार्टअप सपोर्ट सिस्टम। तो ये धीरे-धीरे जो बिग इंडस्ट्रीज हैं और साथ-साथ बिग पब्लिक एजेंसीज हैं वो भी यहाँ करना चाहते हैं। तो एक काम जो हम सर देश में सबसे पहले कर सकते हैं, हम इन यूनिवर्सिटीज को, इन एजेंसी को लगा के एक्सपेरिमेंट का एक बड़ा हब बना सकते हैं कि रेलवे का इनोवेशन के लिए इंक्यूबेटर हो रहा है, फार्मा के लिए हो रहा है, और हमारे पास कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज तो है ही जो इस एरिया में काम करते हैं, तो उनको अगर जोड़ के एक मैपिंग बना दो तो बहुत अच्छा होता है। सिस्टम है उसको यूनिवर्सिटीज को बुलाएंगे तब एग्रीकल्चर पे भी काम कर सकते हैं सर। बिल्कुल इक्रिसाट सर कर ही रहा है। इक्रिसाट जो है वो साउथ इंडिया में 4 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में अच्छी इंक्यूबेशन सेंटर बनाने में मदद किया है, और वो यहाँ भी आना चाहते हैं। तो अगले बार जब मीटिंग करेंगे तो हम सोच रहे हैं कि उनको जोड़ दें वाइस चांसलर के साथ और वो हैंडल हो जाए। एक चीज है जब भी इंक्यूबेशन सेंटर बनाए या आप अलाउ करें तो जेनरिक के बदले स्पेसिफिक, जैसे एग्रीकल्चर आपने एग्रीकल्चर इंक्यूबेशन, तो वैसा होगा ना तो ज्यादा बेटर होगा। जेनरिक होगा तो हर कोई इस डायरेक्शन नहीं मिलेगा। तो बात की बात है सर। आई थिंक सर हमको कोई नहीं बोले उनका so actually अभी तक जो भी डिस्कशन चल रहे हैं they are basically more focused towards policy making, infrastructure provide करना है और कैसे सिस्टम लाना है। बट बेसिकली मैं एक स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर हूँ और हम लोगों ने जो चीज़ें फेस की या जिन चीज़ों से सीखा है अभी, तो वो कुछ पॉइंट्स मैं लाना चाहता हूँ सामने। तो पहला जो एक है जो डिस्कस किया कि पहले तो उन्होंने बोला कि फैसिलिटीज़, तो मैं तो IIT से हूँ फिर भी मुझे अवेलेबल है, बट आई हैव सम फ्रेंड्स कि वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है। सेकेंड ये होता है कि हम लोग के जो करिकुलम वाइज होता है, सो मैनी इंस्टीट्यूट्स दे हैव सम डोंट, बट अगर करिकुलम में आपके प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, तो उनका मेन एम होता है एट द एंड आपको एक प्रोटोटाइप सबमिट करना है। बट एक ऐसा कहीं नहीं है, इवन इन IITs ऐसा करिकुलम नहीं है जहाँ पर आपको एक प्रोडक्ट लाना है फॉर मासेस। तो और एक प्रोटोटाइप टू अ प्रोडक्ट इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी, और कोई गाइडेंस नहीं होता हमें कि एक प्रोटोटाइप को कैसे एक प्रोडक्ट में लाना है। हम लोग एज ए स्टूडेंट वी हैव वेरी गुड आइडियाज, हम लोग ऐसे प्रोटोटाइप्स भी बनाते हैं, बट मार्केट वैलिडेशन क्या होता है, आपको प्रोडक्ट पहले कस्टमर से बात करके आप प्रोडक्ट बनाते हो या प्रोडक्ट बना के कस्टमर के पास ले आते हो, दे बोथ आर वेरी डिफरेंट थिंग्स। इस टाइप के जो भी फैक्टर्स होते हैं कि एक गाइडेंस जो एक सिस्टम होता है कि वी डोंट नो अबाउट दैट। फिर थर्ड चीज़ है कि ठीक है हमने स्टार्टअप मैंने बना लिया, आई हैव अ प्रोडक्ट, बट अब कंपनी कैसे चलाऊं उसके बारे में देयर इज लाइक वेरी ह्यूज कंफ्यूजन, और देयर आर सो मैनी थिंग्स कि अगर हम लोग 3 लोग हैं अगर मेरी टीम में, तो अगर हम लोग कंपनी मैटर्स में चले जाते हैं तो हम लोग का पूरा टाइम वहाँ चले जाता है। सो एक बहुत बड़ा मैटर हो जाता है। थर्ड एक सजेशन है कि नॉर्मली जो स्टूडेंट्स कॉलेज के होते हैं, जो स्टार्टअप पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं, डेवलपर्स हैं, आपके नॉन टेक्निकल फील्ड में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और हर जगह उसकी ज़रूरत पड़ती है, बट ना हम लोग एज ए स्टार्टअप्स वी डोंट नो अबाउट दीज स्टूडेंट्स, इवन द स्टूडेंट्स डोंट नो अबाउट द पॉसिबिलिटीज अपॉर्चुनिटीज टू वर्क इन अ स्टार्टअप। तो कैन वी हैव अ कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म कि जहाँ पर हम लोगों को पता हो कि बिकॉज इन माई टीम आई हायर्ड 2 स्टूडेंट्स फ्रॉम
local colleges, they are very good. But again, उन्होंने क्योंकि उनको job चाहिए था तो उन्होंने some IT company या किसी ऐसी mediocre companies में they have taken a job because they needed a job security. But when they came to us for interns, we saw their potential, they liked our culture. तो in general हमें तो वो मिल गए, but there are many students like them, those they don't know about these kind of opportunities that exist in startup system. So sir, maybe उसके लिए startup cell हो सकता है, startup placement cell हो सकता है कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल पे, जहाँ पे startup को ही स्पेशली आने की परमिशन मिलती है और they can hire and they divert those interns or something. We'll submit a note on that. सर दो पॉइंट्स के बारे में बहुत क्विकली बोलना चाहूँगा. मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन फील्ड में मैं काम करता हूँ एंड आई थिंक एक चीज़ तो हमने सबने बात किया अबाउट फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज इन एवरीथिंग एज अ गवर्नमेंट. तो एक चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए कि जो भी अच्छा काम हो रहा है इसका ना डिससेमिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन होना चाहिए थ्रू सोशल मीडिया चैनल. सर आज सोशल मीडिया के क्षेत्र में हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं एंड देयर आर 12 लाख फेसबुक यूजर्स फ्रॉम ओनली फ्रॉम अहमदाबाद. हम देखते हैं हर एक एंटिटी का आज के डेट में वी हैव अ सोशल मीडिया पेज, राइट फ्रॉम पीएमओ इंडिया टू सीएम ऑफ गुजरात, इवन अहमदाबाद सिटी पुलिस, अहमदाबाद ट्रैफिक पुलिस का भी एक फेसबुक पेज है, राइट. सो जो एंड यूजर है उसको पता कैसे चलेगा कि गवर्नमेंट के साइड से कितनी पॉलिसीज आ रही हैं, या मैं एक स्टार्टअप चला रहा हूँ, राइट. सो मेरे को भी आज तक ये आइडिया नहीं है कि एज अ स्टार्टअप गवर्नमेंट के तरफ से क्या क्या चीज़ें मेरे पास अवेलेबल है. तो वो जो डोमेन की हम लोग बात कर रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम डोमेन वी शुड सेट अप ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स लाइक वेरीफाइड सोशल मीडिया अकाउंट्स, फेसबुक पेज एंड ट्विटर अकाउंट, जिसके थ्रू हम कंटिन्यूसली डिससेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन करते रहें. एक फ्लो जाता रहे कि एजुकेशन मिनिस्ट्री से ये सारी चीज़ें और ये सारी चीज़ें पाइपलाइन में, जो भी सब हम ये स्टार्टअप महोत्सव के बारे में बात कर रहे हैं, ये सारा का सारा अपडेट वो सोशल मीडिया चैनल्स के थ्रू पब्लिक की तरफ जाए, जिससे ना केवल गुजरात के लोग बट पीपल फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड कैन सी दैट व्हाट आर द एक्टिविटीज व्हिच आर हैपनिंग विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टअप इकोसिस्टम इन गुजरात. दैट्स पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 इज एजुकेशन सिस्टम में भी मैं काफ़ी काम करता हूँ. आई गो टू मीडिया कॉलेजेस, कम्युनिकेशन कॉलेजेस, वहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ, बच्चों से इंटरेक्ट करता हूँ. सो वहाँ पे आई थिंक इस पर गिव अ वेरी वैलिड पॉइंट कि सिलेबस में देयर इज़ अ वेरी बिग गैप, राइट. सिर्फ एकेडमिक ही पढ़ाया जा रहा है कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है. इट्स मोर ऑन द टेक्सचुअल फॉर्मेट. मैं एक बारी IIM क्रॉस रोड का एक किस्सा बताना चाहूँगा. मैं वहाँ पे खड़ा होकर ब्रेकफास्ट कर रहा था एंड देयर आर सर्टेन सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु अप्रोच्ड मी. सो उन्होंने बोला हम अमृत मोदी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से हैं एंड हमको एक प्रोजेक्ट दिया गया है wherein we are trying to open a food based startup. उन लोगों ने स्टॉल लगाया होता है एंड दे हैड सम फ्यू स्टाफ जो कि वो लोग बेच रहे थे. मैंने पूछा इस प्रोजेक्ट के बारे में आप और बताएं मुझे. तो उन्होंने बोला कि हमको एक छोटा सा कॉलेज का फंड मिला है जिसको हमें पूरा स्केल बिजनेस करके एट द एंड ऑफ 2 months 3 months हमको सबमिट करना है. सो दिस इज मोर लाइक यू नो रियल लाइफ थिंग कि जहाँ पे बच्चों का एक सेमेस्टर या एक 2-3 महीने का पूरा करिकुलम इज बेस्ड ऑन बिजनेस. वहाँ पे वो लोग अपनी कंपनी का नाम डिसाइड कर रहे हैं, कंपनी का लोगो डिसाइड कर रहे हैं, आइडेंटिटी डिसाइड कर रहे हैं, A to Z, एंड दैट इज बीइंग मार्क्ड बाय द कॉलेज, राइट. सो दिस आई थिंक इससे फिर बच्चों को और आइडिया लगेगा कि यू नो व्हाट इज अ कंपनी का मेरा नाम क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी क्या होना चाहिए, एंड धीरे धीरे चीज़ें फिर क्लियर होगी. What I would like to add to that is जो हम गुजरात startup.gov.in की बात कर रहे हैं, उसमें एक चीज़ ऐसा कर सकते हैं कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज में जो भी एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप से रिलेटेड जो भी काम हो रहा है, उसको हम बोल सकते हैं कि जो भी काम हो, छोटा बड़ा जो भी साइज का, दे शुड इन्फॉर्म द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और वो चीज़ की इन्फॉर्मेशन वो स्टार्टअप साइट पे चली जाए ताकि एवरीबडी कैन नो कि ये आज ये सिटी में ये टाइम पर ये चीज़ होने वाली है, और जब हो जाए तो एक पोस्ट इवेंट रिपोर्ट भी उसकी डालनी है. अपार्ट फ्रॉम दैट वी शुड आल्सो थिंक दैट थ्रू टेक्नोलॉजी हम कितना ज़्यादा पहुंच सकते हैं. मे बी वी कैन थिंक ऑफ क्रिएटिंग सम वेबिनार, राइट. इस तरह के वेबिनार्स करें वेयर सर कैन एड्रेस टू अ huge public, 5 लाख बच्चों तक पहुंच, right, of course, through technology, through Google Hangout, Naren Modi sir ने भी किया. So just to add on to this thing, you know, Nitin is talking basically on more on the curriculum side. I also wanted to connect some industries to it because I basically work with a lot of industries personally, and I have seen a lot of industries like which are having a turnover of 500 crore, 1000 crores. They're also looking for startups. So if they get involved into this particular activity, because they're not aware actually, because this happens in a closed room. So wherein we can have more awareness coming in, and we can also involve them in this particular meetings,
So this becomes a larger platform, and industries could connect with startups, and they can handhold them particularly and take them to the next level. So just add one thing, like in Bangalore, जितने भी बड़े कंपनीज हैं, फार्मा कंपनीज हैं या आईटी कंपनीज हैं, सबने अपने स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। और गुजरात के बड़े-बड़े फार्मा कंपनीज हैं, वो कुछ भी एक्टिविटी नहीं है, उनके लिए 50 लाख या 1 करोड़ बड़ी बात नहीं है, बट उनका वो थॉट प्रोसेस ही नहीं है। तो सर एक बार इंडस्ट्री के साथ भी बैठकर उनको मैंने पहले बताया कि next time we'll sit with my colleague Saurabh Patel and the department also. We'll sit together, both department, universities, सबके साथ बैठ करके next. I would like to talk about the funding aspect right now. यहाँ पे जितनी भी पॉलिसीज डिसाइड होती है, एक टाइम फ्रेम उसमें एक टाइम फैक्टर होना चाहिए, बिकॉज एक छोटा स्टार्टअप है, इनिशियल 2-3 लाख रुपए चाहिए, वो उसके लिए 2-3 महीने वेट करेगा, वो आइडिया ड्रॉप हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जाएगी। एक टाइम बेस्ड एस्पेक्ट होना चाहिए, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स है, ये प्रोसेस है, फॉलो इट एंड गेट योर मनी, वेरी सिंपल। और एक दूसरा एक पॉइंट यहाँ पे रखना चाहूँगा, जो एग्जिस्टिंग स्टार्टअप्स है उसको प्रमोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है नए स्टार्टअप्स को या नए लोगों को इकोसिस्टम में लाने के लिए। So when you actually talk about website, I would also suggest we have one dedicated helpline number, because maybe rural area में लोगों को इंटरनेट यूज करना नहीं आएगा, इंग्लिश में पढ़ना नहीं आएगा, बट फोन पे कॉल करके उनको इन्फॉर्मेशन लेते आएगा इजीली। So if you could have a dedicated helpline for them. और कोई बाकी? Sir. Yes. So I'll talk from a very different perspective. Normally क्या हुआ है, आप ध्यान से देखेंगे तो 60s में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो IITs फॉर्म किए गए, फिर मैनेजमेंट का आया तो IIMs फॉर्म किए गए। अभी हमने क्या करते हैं, रिसेंटली वी हैव स्टार्टेड अ वेव ऑफ स्टार्टअप्स, और थैंक्स टू नरेंद्र मोदी जी के एवरीबॉडी द एज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज नाउ गोइंग डाउन, but parallelly the existing education system is not geared up to get these people ready. So the only way is to collaborate the existing resources. For example, EDI is doing a tremendous job. Colleges are trying at their level best. Same problem आई थी एजुकेशन के अंदर, जब टीचर्स नहीं मिलते थे तो हम लोगों को टीचर्स के लिए टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खड़े करने पड़े ताकि टीचर्स पैदा हो। Somewhere I feel that like IITs, like IIMs, like EDIs as well, but EDIs have a very different approach to it. But if they can customize and we can have multiple such startup colleges, I am very clear that I don't want to have physical infrastructures. These are virtual infrastructures which is available across cities, so that it can be easily be taken across, and then people like them, they can actually access all those things which are not accessible because the professors in the college are not geared up for startups yet. हम जिन लोगों को पैदा करने को बोल रहे हैं startups, वो खुद शायद नहीं जानते startups होते क्या हैं। So कहीं ना कहीं ये centralized infrastructure करना बहुत जरूरी है, because प्रॉब्लम क्या हो रही है, अगर आप बैंगलोर को स्टडी करेंगे या बाकी जो प्रोग्रेसिव है उनके अंदर पहले तो लोगों ने, आप बैंगलोर का अगर स्टडी करेंगे, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द कल्चर, बेसिकली बैंगलोर वाज एन आईटी हब, और आईटी हब होने के कारण क्या हुआ, वहां पे ऑलरेडी बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था वेस्ट का, और वेस्ट का जब वो इन्फ्लुएंस यहाँ पर आया तो लोगों को वो कल्चर मिलने लग गया, लोगों ने वो स्टार्टअप्स खड़े करने चालू किए और फिर वो बढ़ना चालू हुआ। क्योंकि गुजरात इज ए मैन्युफैक्चरिंग हब, if you have to understand, there is a very difference between the overall system. Gujarat has been a very preliminary manufacturing hub. तो कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप तो है हमारे यहाँ पर, उसको चैनलाइज करके कॉलेज या एक इंस्टीट्यूशन, इवन AMA can be one part of it, so you can collaborate AMA with EDI, with CED, make them connect together and form a startup culture which can then go into colleges, because colleges itself cannot do it. Trust me, they cannot do it. If you want the colleges to do entrepreneurship, it will take at least 5 to 10 years, तब तक ये बच्चे लोग जितने अभी तैयार हो रहे हैं, जिनको आधा ज्ञान है आधा ज्ञान नहीं है, वही लोग स्टार्टअप इको सिस्टम में जो फेलियर रेट्स है उसको बढ़ाने वाले। एक काम हो सकता है सर, जितने भी एजेंसीज हैं हमारे पास और जितने भी सिस्टम्स हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप या लाइवलीहुड को लेकर कुछ ना कुछ कदम लिए हुए हैं, उनकी अगर एक मैट्रिक्स मैप करते हैं और उस पूरा मैपिंग जो सर्विस हमारे पास एग्जिस्ट करता है, जैसे कि इंडस्ट्री स्कीम हो गया, रूरल डेवलपमेंट की हो गई, तो उसको मैपिंग करके हम सिर्फ इंटीग्रेट भी करते हैं तो हमको नया रिसोर्सेज की जरूरत नहीं पड़ेगी सर उसको चालू करने की।
और ऐसे सिस्टम्स हैं, सीईडी को आउटरीच करने के रिसोर्स है, ईडीआई को कैपेसिटी बिल्डिंग करने के रिसोर्सेज दिए गए हैं, आईएम को केस रेटिंग के रिसोर्सेज दिए गए हैं, हमारे इंक्यूबेटर नोडल इंस्टीट्यूट को दिया है। अगर मुझे लगता है वो एक स्ट्रेंथ मैपिंग कर ले और फिर हम उसको लिंक कर देते तो मुझे लगता है कई सारे बट सर आई वेरी क्लियरली हम वॉलंटरली ये काम कर रहे हैं, इससे मुझे नहीं लगता कुछ होने वाला है। I'll be very honest with you. Right, because IIM or EDI, हाँ. they have limited contribution. Yes. Contribution is very limited. Even IIT the contribution it will be in the totally. But what is the big mass is the 500. Yes. Are we prepared? Are you prepared for We are that? not prepared. Yes, sir. And your concern is very true. They are going to add on that Failure rate. because of faculty, our basic mindset of our main institutions, those who are the actually backyard of the proposed student startup. Proposed student startup, IITs and IIM, they are doing since several years. But what is expected from our state level institutes? Sir, I'll just put one point which you validate this. I will put one point. आज की तारीख में क्या कोई भी यहाँ पे स्टार्टअप्स आईएम में अप्लाई करेगा तो उसको मिल जाएगा एंट्री? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिल रहा? Because they have a fixed criteria in which they validate startups. कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं कि अगर हम कोई प्रोसेस ही नहीं रखने वाले वैलिडेशन का तो अल्टीमेटली हम फेलियर रेशियो बढ़ा रहे हैं। तो उसमें आई जस्ट ऐड अप टू दिस। सो एक मुरारी साहब मामला ऐसा है कि हम जो स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं ना, हम सिर्फ स्टार्टअप एज ए बाई प्रोडक्ट जो मेन रेवेन्यू या इंपैक्ट उसको नहीं देख रहे हैं। केरला के एक्सपेरिमेंट जो रोहित यश ने बताया, सबसे बड़ी शिक्षा जो देश को मिला है उस एक्सपेरिमेंट से पिछले 3 साल में कि उन्होंने 500 टीम्स को लेकर स्टेट टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में जब जीटी में चल गया उसके बाद किया, 500 से 100 स्टार्टअप बचे, लेकिन जो 400 स्टार्टअप्स 2 साल बाद निकले, दे हैव बीन एक्वायर्ड एंड गॉन टू अ डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सपीरियंस ऑलटुगेदर। तो एंटरप्रेन्योरशिप मुहिम में हम ये मान के ना चले कि जो स्टार्टअप एजुकेशन जिनको दे रहे हैं वो स्टार्टअप ही बनेंगे, और जो एंटरप्रेन्योरशिप का जो प्रोसेस है वो एक नया कल्चरल स्किल ऐड करेगा। इंडस्ट्री के अंदर जो एक बात है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने सारी सही बातें कही। हमारे जो स्टार्टअप्स है ना, हम उन्हें पढ़ाते क्या है, हम उन्हें .NET और C++ पढ़ाते हैं। विकास भाई जानते हैं कि उनके यहाँ जितने स्टार्टअप्स हैं वो कोई इन टेक्नोलॉजीज को यूज करके कोई अच्छा स्टार्टअप नहीं बनता है। तो जब हम उनको स्किल्स ही नहीं दे रहे हैं तो वो हाई क्वालिटी स्टार्टअप बन ही नहीं सकते जो मार्केट में कॉम्पीट करेंगे। आज की तारीख में अगर आप देखें तो आईएम में बैठे साहब के तो आईएम में मैं नहीं मानता कि गुजरात का एक भी स्टार्टअप है। नहीं, तो इसी तरह से 12 नोडल सेंटर्स में आप कितना हो गया जीटीयू को, अहमदाबाद यूनिवर्सिटी को, एचजे को छोड़ के अगर आप रिव्यू कर रहे हैं तो बाकी के 8-9 सेंटर में एक भी गुजरात का स्टार्टअप नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आज जो आप स्टार्टअप की बात करें उसकी दूसरी बात भी देखी जाए, जब गुजरात समाचार में बिजनेस डे आया तो 3 आर्टिकल एक्सेलेंट आया है स्टार्टअप के ऊपर, क्योंकि स्टार्टअप को आपको फेल्योर रेट में इनिशियली कम करने के लिए क्या-क्या लिमिटेशंस आती है वो भी सभी फैक्टर्स हमें कंसीडर करने। सर आज की तारीख में स्टार्टअप का आगामी 3 आर्टिकल आ जाएंगे गुजरात समाचार में। सर आज की तारीख में स्टार्टअप करना इसलिए भी फैशन हो गया है क्योंकि इंडस्ट्री ये कहती है कि अगर फेल्ड स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर मिल जाता है तो मैं उसको एक धंधे का मैं बिजनेस लाइन पकड़ा दूंगा और उसके अंदर मैं उसको 5% की इक्विटी दे दूंगा पर अगला मेरे लिए धंधे की तरफ चलाएगा उसको एक्सपेरिमेंट करेगा। अब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो लोग फेल्ड स्टार्टअप्स भी ढूंढ रहे हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, so output is very simple that entrepreneurship mission is not to create only entrepreneurs but also to skill human resource for many people। तो ये हम clearly communicate करें ताकि इरादे जो यूनिवर्सिटीज की होगी जो definition of entrepreneurship is not about creating new business but that you need to communicate, it is all about a thought process that you need to communicate। integration चाहिए सर। So I think there are 2-3 things I'm talking about the mentorship. Whenever the worldwide or US as an example, they have a certified registered mentors who can actually provide the support. Yes. So we need to create who should be a mentor. Sir, when we talk about the EDI unit have the capacity to go beyond. Obviously, we are working in a limited thing, but the amount of curriculum and the type of thing that has been developed, I think that needs to be passed on to the larger chunk of people across Gujarat. Like, yeah, there is a process on which you can talk about. And third part, I'm talking about that we don't have a dedicated system or a material available. Let's say tomorrow I have to start a business from 50,000 to start at 25 lakhs, the definition of SME or anything. What are the processes I should be doing? So, कल अगर मेरे को सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री करनी है तो मेरे को क्या-क्या लाइसेंसिंग चाहिए, मेरे को क्या प्रोसेस करनी है। I think एक सिंपलर मैनर पे ऐसे कोई डायरेक्ट फ्लो चार्ट अवेलेबल नहीं है कि अगर मेरे को आइडिया चाहिए तो मैं करूँगा क्या। And one more thing I think everybody is talking about, we have both this parameter. We have students having idea, we are looking for investors for them or funding for them, and there are industries having an idea. They are looking for people who are ready to work on this idea. I think ये दोनों चीज अवेलेबल है, हमको सिर्फ कनेक्ट करनी है। एंड आई बिलीव अक्रॉस गुजरात आई थिंक हम इतनी स्टूडेंट सपोर्ट किए हैं और जिस स्टूडेंट को एजुकेशन सिस्टम से उनको सपोर्ट कीजिए कि ये अच्छा सेटअप है
investors are also ready to pocket money to that type of a setup. And I have so many examples in Ahmedabad where student startups are invested by the local investor, local people who have provided the guidance to them and help them this is the way it is feasible. So I think ये सारी system of understanding available है, we need to channelize them and just present before the board. आपने जो बताया उसके साथ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया है हाँ तो सर हमको एक्सेप्ट करना ही है बिकॉज़ इफ somebody has not to take any license कोई लाइसेंस लेवा सेल्फ सर्टिफिकेशन કરી દેવાનું છે બાય એન્વાયરમેન્ટ ક્લિયરન્સ છે મારે વેટ એ લેવાનું નથી એમ સો ધીસ વિલ બી એપ્લિકેબલ ટુ અવર સ્ટેટ ઓલસો so that will make so many things clear जो आपने बताया sir but when is that getting applied No, because the point is like this. no अप्लाई नहीं करना Let एनवायरमेंट क्लियरेंस आपको चाहिए आपको कर लेना नहीं जाना ही नहीं है यू हैव टू सिंपली सेल्फ सर्टिफाइड कि मैं एनवायरमेंट क्लियरेंस का मैं ये नॉर्म्स में फॉलो कर रहा हूं इफ यू आर नॉट फॉलोइंग देन समबडी विल कैच Friends, the point is very clear. 3 phases है. कल्चर बना के स्टार्टअप चालू करना, सपोर्ट देके ग्रो करना और नेक्स्ट लेवल पे लेना. एजुकेशन सेक्टर से हम पहला कदम पे काम करते हैं. हमको ग्रो करना, उसको फ्लिपकार्ट बनाना, ये हमारी जिम्मेदारी में अभी नहीं है. हम उसको नहीं लेते. सर अगर नहीं करेंगे तो वो फेल होंगे. तो एट द एजुकेशन लेवल वी हैव टू ग्रूम दैट सो दैट दे बिकम दैट. अदरवाइज क्या होगा? हमने सिर्फ एक हवा फैला दी, हमने लोगों को ग्रो करा दिया, हमने एक सिस्टम बना दिया, पर वो फिर उनको मालूम ही नहीं कि जो पाया है वो कितना वीक है. But then the industry department has a policy to support, right? So what लेकिन are we talking here? क्लियरेंस वाली बात और सब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया है जो 12 पॉइंट्स है 19 पॉइंट्स है 19 पॉइंट्स either it is to be declared from our side that state government is also accepting every सब उसमें अपना जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट्स बता ये આપણે સ્વીકારીને જાહેર કરવું પડે That can be done with the industry department, sir. સાહેબ આપે જે કહ્યું ને એ બહુ જ બરાબર થશે એનાથી આપ અને ઇન્ડસ્ટ્રીઝ में ઇમ્પ્લિસિટ છે બધી ક્લેરિટી આવી ઇન્ટિગ્રેશન બધું થઈ જાય This is startup, not before Pankaj Saab and Minister Sir have their concluding remarks, I would like to just suggest a couple of things. Sir, एक तो एजुकेशन डिपार्टमेंट की आप सबकी इच्छा है ऐसी कि टॉप 5 एजेंडा में से एक स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप हो आपके एजेंडा में और दूसरा कि बेसिकली आप जहाँ पर भी जा रहे हैं सर स्टार्टअप गुजरात का नाम लीजिए उससे आधा काम हो जाएगा હું જ્યાં જોઉં છું ત્યાં બોલું છું. Whenever I go to university, students, सर उससे परसेप्शन बदल जाएगा उससे कल्चरल चेंज जो चाहिए 50% कम हो जाएगा सर आपके थोड़े कंक्लूडिंग रिमार्क्स बिफोर मिनिस्टर सर સર એક વાત તમે જ્યાં પણ જાઓ ત્યાં તમારી એક સેલ્ફી લઈને તમારા ટ્વિટર ઉપર પણ Sir, social media will make a lot of impact in creating awareness and creating that culture of startup. We had almost for 2 hours we had a very good discussion on startups with special focus on the student startups. And on the 16 January आदरणीय पीएम साहब પણ સ્ટાર્ટઅપ પોલિસી અંતર્ગત એક એક્શન પ્લાનની જાહેરાત કરી છે. See, even industry department of the state, they also have a startup policy in the Gujarat Industrial Policy 2050, which is valid for 5 years. And 2 days back, Secretary DST, Mr. Dhanjinder Dwivedi also mentioned that even DST is also coming up with a specific startup policy for IT. So a lot is happening basically at Government of India level and a lot is happening even at state level. So we are not, as an education department, we are not here to replace what industry department is doing or what IT department is doing. We would like to complement their efforts basically. Yes. And wherever there are some gaps, we will try to fill up those gaps basically. And as Honorable Minister in the beginning mentioned it, we are wholeheartedly we are supporting this drive. We are absolutely with you, we are behind you, and we are part of it basically. So far as the role of education department in this process is concerned basically, let me mention that, and the Honorable Minister also mentioned a couple of minutes back, that basically our focus will be now more on universities. As somebody mentioned that this state has maximum number of universities in the country, there are as many as 56 universities now. And each and every university, in some or the other way, they are also implementing some kind of a student startup policy. We need to integrate those policies. And as somebody rightly mentioned that we need to come out with a common policy for
all the universities. We'll definitely under Honorable Minister's guidance, I think we'll try to work on that also. And some of the suggestions, comments concerning education department, concerning universities and colleges which have been received and which perhaps will make all our efforts to implement those issues also. One was the issue relating to reforms in our curriculum. Somebody mentioned that there are gaps in our syllabus also, and how best we can carry out curriculum reforms so that the gap in our syllabus between what is required and what we actually are providing, that gap is reduced basically. We will definitely do work on this. One very important issue which was raised was regarding sensitization of the vice chancellors. Basically, I personally feel that we need to sensitize our own vice chancellors. We need to sensitize our own. Because until unless they are the leaders basically. When we talk about education, it is the university vice chancellor is the leader of the university. The college principal is the leader of the college, concerned college. So until and unless we are not in a position to change their mindset, I think nothing much can be. So as I've been in touch with Professor Mahanta also, and we have been discussing how to carry forward this in coming days. We'll definitely we'll sit down, we'll work together. And what we will do, what I propose basically, at least before we hold a meeting with, as Sir has also suggested, to hold a meeting with industries department, with a meeting with the vice chancellor of the universities. What we need to do is basically we should first prepare a draft as to what exactly we want to speak with them basically. The issues which we would like to discuss with the vice chancellor, the issues which we would like to discuss with the college professors, principals of the engineering colleges. So that draft should be ready with us. So I request Mr. Mahanta also, yes, we will sit down and we'll work out those issues basically, and those should be very crisp and to the point, so that immediately those can be discussed in the meeting in the next workshop with the vice chancellor, the sensitization workshop with the vice chancellor. Immediately we can, because we need to now move forward and we need to move fast. Yes. So on the behalf of the, on my behalf, on the behalf of the department also, under Sir's leadership, as the education department definitely will try to carry forward the message and whatever. And one good thing which has emerged during the discussion today is that each and every one of us wants to move forward in this direction. So we are very thankful. I understand what my secretary has said. आपके सभी सुझाव मैंने और मेरे साथियों ने, आप देखते होंगे कि हम सभी लिख रहे थे, मतलब कि we have taken this meeting very seriously. जो भी सुझाव आए हैं और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए I have to discuss with Honorable Chief Minister. ये महोत्सव और डे बहुत बढ़िया सुझाव है, एक दिन का हो सकता है। जो क्राइटेरिया तय करना है वो भी महंता ने बताया कि हम 3 या 5 लोग अब नाम दे दें हमारे डिपार्टमेंट के साथ, पुरानी दवे किसी के साथ बैठ करके अभी हम 3 महीने के बाद फिर मिलेंगे। In between these 3 months, आप 3 या 5 लोग डिपार्टमेंट के साथ बैठ करके, दूसरा आईटी, इंडस्ट्री और एजुकेशन, वो भी अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आई विल सजेस्ट कि एक प्राइमरी आपके साथ जो बात हुई है वो कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नोडल एजेंसी, आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि हमें यहाँ जाना, वहाँ जाना, ये अभी इट इज अ डिले पॉलिसी, मगर एक ही जगह जाने से सुझाव मिल सकता है, मार्गदर्शन मिल सकता है, सॉल्यूशन मिल सकता है। तो ये सभी मुद्दे की चर्चा में विद इन अ वीक और फोर्टनाइट पीरियड व्हेन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर गिव्स मी टाइम, me and my officers will discuss with CM. ये सबसे पहला मुझे लगता है कि ये नोडल एजेंसी का काम हो जाए तो सारे के सारे सुझाव, कोई ऐसे नोडल ऑफिसर कि
काम में इंटरेस्ट हो। ऐसे सीनियर और जूनियर कोई भी IAS ऑफिसर पंकज जोशी विल फाइंड इट, तो आपके साथ वो कभी भी बात करें। और आपने बताया कि sometimes we do not get proper or at time feedback, तो वो भी आपकी समस्या दूर हो सकती है। तो 2 घंटे हम बैठे हैं, इसका मतलब कि सरकार ने आपके सभी सुझाव और इस इश्यू पे हमने बहुत सीरियसली काम किया है। वो सिलेबस का भी सुझाव बहुत अच्छा है। Where to sit and discuss about this subject in every university, वो तो कल से हो सकता है। कि यूनिवर्सिटीज वाइस चांसलर को बता दे कि एक रूम अच्छा सा इस काम के लिए, उसके ऊपर बोर्ड भी लगा हो, स्टार्टअप रूम। तुमने पूछा सिवा जवाब दो तो मैं यो इसमें मंत्री खरा संतरी तंत्री એટલે અમારે એમનું માર્ગદર્શન પ્રમાણે કેટલીક બાબતોમાં મને આઈ એમ હેપી ટુ હેવ સચ ટાઈપ ઓફ પોઝિટિવ ઓફિસર્સ ઓલ્સો। અને બેંગ્લોરમાં શું લાગે છે અમારામાંથી કોઈ જવું જોઈએ? सर वी शुड एक्सप्लोर आप लोग की टीम एक बनाकर उनको सर बुला लेंगे, उनको बुलाना चाहिए। सब स्टेट्स के इकोसिस्टम में एक्चुअली लोग काम कर रहे हैं, बुला के मीटिंग कर लेंगे। यहाँ उनको बुला लेंगे सर, यहाँ यहाँ बुला एक मीटिंग हम आपकी प्रेजेंस में यहाँ कर लेंगे। यहाँ एक दे शुड बी हियर। मैं कहता नहीं हूँ, मैं सुझाव मांगता हूँ। इफ यू सजेस्ट कि जाना है तो वी आर रेडी, उनको लाना है तो वी आर रेडी, मगर देश में सबसे अच्छा और पहला काम हमें करना है, my government's commitment. Sir, then I would recommend we should also bring people from US and Israel. ये 2 countries के Israel ज़्यादा काम चल रहा है। इजराइल की टीम भी आई सर, बैंगलोर की अभी आया भी बैठी है। हमें कोची भी जाना चाहिए क्योंकि बैंगलोर डेवलप हो चुका है आप ऑलरेडी। जाना चाहते हैं या लाना चाहते हैं? हम क्या कह सकते हैं, वो एक ऐसा इकोसिस्टम है जो अभी डेवलप हो रहा है, वो हमारी स्टेज पे है। Any among you have visited Israel? But they are here, sir. उनकी टीम यहाँ पे। I have visited twice to learn agriculture, to learn deep irrigation, to learn water conservation. I am highly impressed. My last visit was in '96, but still I am thrilling. क्या इजराइल है, इतना बढ़िया। That's why, sir, we should not now follow our country. Now, if you have to become the leader, we have to follow the world's leader. Yes. We will see. हम सिर्फ बैंगलोर क्यों जा रहे हैं? हम सिर्फ इजराइल जाएं और US जाएं, जहाँ पर सबसे बड़ा पहले बैंगलोर को बुलाया, फिर पहले बैंगलोर फिर इजराइल। मेरे एग्रीकल्चर के आप सब जानते हैं, मेरा मैं लंबे टाइम तक इजराइल में रहा और सॉरी एग्रीकल्चर रहा, तो आज भी मेरा संबंध एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू इन इजराइल। कोई भी गुजरात से जाता है तो बोलते हैं कि हाँ भूपेंद्र से को जानते हैं, यू नो फॉरवर्ड एग्रीकल्चर मिनिस्टर। तो सब करेंगे। आप 2, 3, 5 जो टीम बनाते हैं अपने ऑफिसर के साथ बिठाएं और मेरी दरखास्त को मंजूरी मिल गई है कि यूनिवर्सिटी में कल से व्यवस्था हो सकती है। मिलते रहेंगे। आई एंजॉय। आपको कहना था वी ऑल्सो एंजॉय।